स्टैंड अप, रैप, म्यूजिक, पोएट्री, शायरी या स्टोरी टेलिंग और ढूंढ रहे हैं एक धमाकेदार स्टेज? तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। वी आर द क्रिएटिव कनेक्ट और हम आपके लिए ला रहे हैं एक नेक्स्ट लेवल शो, लेकिन थोड़ा हटके। ये सिर्फ एक ओपन माइक शो नहीं है, ये है टैलेंट वर्सेस टैलेंट, फेम वर्सेस फॉर्च्यून। हम ढूंढ रहे हैं रॉ टैलेंट जो बन सकता है इंडिया का नेक्स्ट सेंसेशन। यहाँ जजेस होंगे ऑडियंस से चुने गए, मतलब 100% रियल, 100% फेयर। एंड यू वांना नो द बिगेस्ट ट्विस्ट? द बिगेस्ट ट्विस्ट इज विनर जीतेगा जैकपॉट, रनर अप जीतेगा आधा, और वो भी हर राउंड में, और हारने वाला भी जीतेगा प्राइस का आधा। मतलब यहाँ कोई खाली हाथ जाएगा ही नहीं। प्लस हर परफॉर्मर को HD वीडियो फ्री मिलेगी और रजिस्ट्रेशन फीस 0, मतलब सब कुछ फ्री। So, before the words flow and creativity takes over, let's spark the stage with pure energy. Bringing the vibe, the rhythm and the fire to the set, tonight's tone. Please welcome the one and only Goldie. Let's the show begin. What's up everyone? I hope you all are fine. So I'm from Assam and my name is Goldie. So मैंने एक गाना बनाया था. This is in Assamese. I hope you guys have listened someday. तो वही सीन है. चलो फिर. Hey, make some noise. Everybody come on please. Let's go. Hey. Hey, I'm in. Open more, open Corey, imagine I've been running in the scene, I have dreams. More rare, pretty beat, more rosa, more brother, more queen is a life of my life, I do marketing, yeah. Wanna see myself in top of the world, wanna lay down, cause the wall is a cold, when I know I'm right, yeah, Corey, motor, gonna be for, but I just brought in the ball. Hip hop till I die. I'm the one more regular pretty beat now. As the real with the real, so you guys gonna real line. Bago wanna need to tie cause I the high qualified. Step with beats, don't step in my shoes. Wanna live life, is where it goes. I got dreams to climb and lose my hopes. Nobody's living loyal, so I keep the hose. I don't talk shit, go and talk shit. How can I trust you when I'm already lost it? I'm so saucy. Sibo nar brother, I'm so costly. Glitzy mind, babo nar more costly, yeah. It's shipping. Tripping on my mind, tripping on my mind. It's shipping. Hey, tripping on my mind, tripping on my mind. It's shipping. Hey, tripping on my mind, tripping on my mind. It's shipping. Hey, tripping on my mind, tripping on my mind. Good day, razon dole. Tumi duba hote, bahut tole. মই কম নহয় যদি তুমি সৰগ কৰি কাউ তলনি দুপৰি কিন্তু তোমাৰ বাবে মোৰ মুখত সদায় যে থাকিব চৰি থাকা মোৰ হাত ধৰি তোমাৰ মৰম জুই মই যদি তোক কৰি তুমি থাকা য'ত মোৰ মন হৈ যায় তোৰ শেষ মোৰ জীৱনত তুমি আহি দিয়া ৰ'দ প্ৰেমৰে পাইছ তুমি আৰম্ভণি তুমি ফুল ষ্টপ এদিন হবা তুমি মোৰ বুলি ৰাখিছো হওক জীৱনৰ সংগ্ৰামত আছো অকলে কেনেকে কৰিম ফাইট কোনো নকলে সদায় বিচাৰো মই সফল কাম সকলে একো যে নচলে লাগে এনে যদি যোনে ঠেলে ভাল পথলে মোৰ মুখটোক Wanna vision you down to my sketchbook Bro, আধুনিক কবি মোৰ আধুনিক look I swear can be up in the room Everybody sing with me Tripping on my mind, tripping on my mind Hey, shipping Tripping on my mind, tripping on my mind, let's go! Shipping Tripping on my mind, tripping on my mind Hey, shipping Hey, tripping on my mind, tripping on my mind Hey, shipping Woo! Let's tripping on my mind, tripping on my mind Hey, shipping Hey, tripping on my mind, tripping on my mind Okay, thanks a lot. Thank you. Thank you so much, Goldie. Thank you so much for being a great team player. Thank you. So let's start, guys. Thank you so much, Goldie, for this electrifying performance. So, the first performance of the night is going to be by Palak. Let's give it up for him. Hello everyone. Hello sir.
सो आज आप सबके सामने एक छोटी सी भूमिका बांधूंगी। आशा करती हूँ आप सबको अच्छी लगेगी। तो पहले जब प्यार होता है तो बहुत सारी मीठी मीठी इनसिक्योरिटीज होती है। तो कहा है कि मैं जलता हूँ तेरी बिंदी से जो तेरे माथे को हर रोज चूमती है। नहीं पसंद मुझे काजल लगाना तेरा, तेरी आंखों में बसती दुनिया मेरी है। नफरत है मुझे जिससे तू अपने होठों पर लकीर खींचती है जिन पर सिर्फ मेरा अधिकार है। नहीं पसंद मुझे वो चांद जो तुझे सुला देता है, तेरी रातें भी तो सिर्फ मेरी हैं। या वो सूरज जिसके साथ तू उठ जाती है और फिर मुझसे दूर काम पर चली जाती है। दिल जला देती है जब जब वो साड़ी तेरे बदन पर मेरे हाथों से बैठती है। नहीं पसंद वो पिन जो तू ठीक 3.5 मिनट में अपने बालों में लगाती है। मुझे मेरी ख्वाहिशें खुली आज़ाद हवा के साथ बहती हुई पसंद है, बिल्कुल मेरे इश्क की तरह। पर फिर वो इनसिक्योरिटीज थोड़ी बड़ी बन जाती हैं और आपके इश्क के बीच में आ जाती हैं और आपके आर्ग्यूमेंट्स आपके इश्क के बीच में आ जाते हैं। तो अगली कविता का नाम है दो पहलू। तो कहा है कि जिस दिन तू गया था आसमान में चांद अधूरा था। मेरी बातें अभी आधी ही हुई थी पर वक्त भी थोड़ा कम था। अब तब आना जब आसमान में चांद पूरा हो, बातें भली ही कम हो पर वक्त सिर्फ हमारा हो। अब तब आना जब तुम मेरी चाय को और मैं तुम्हारे जाम को पसंद करने लगूं। खामोशी अच्छी लगने लगे ताकि मैं सिर्फ तुम्हें देख सकूं, बिल्कुल पहले की तरह। पर कभी कभी लोग वापस नहीं आते हैं और चले जाते हैं, बट एक एम्प्टीनेस रह जाती है। अगली कविता का नाम है मेज पर कुछ कोरे पन्ने रखे हैं, जाने से पहले अपने लफ्ज छोड़ जा। जो बातें अधूरी रह गई थी वो बेखौफ सारी कह जा। जो शिकायतें खामोशी में कैद थी वो इस घर की चौखट पर छोड़ जा। जो शाम की चाय साथ पिया करते थे वो अपनी झूठी प्याली में छोड़ जा। जो सपने हमने साथ बुने थे वो बिस्तर के सिरहाने छोड़ जा। जो अश्क तूने मेरे इश्क से बेहतर संभाले थे, जो अश्क तूने मेरे इश्क से बेहतर संभाले थे वो मेरे फैले काजल में छोड़ जा। जो पल हमने साथ बिताए थे वो आईने पर लगी मेरी बिंदी के पास छोड़ जा। आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, पर जाने से पहले मेरी मोहब्बत छोड़ जा। फिर आप किसी तरह कोशिश कर भी लेते हो मूव ऑन करने की, पर फिर भी आप उस एहसास को भुला नहीं पाते हो। मेरा आखिरी पीस कहा है कि जिस दिन भुलाना हो मुझे अपनी सिगरेट निकाल कुछ कश मार लेना। तुम्हारे अंदर से जो धुआं निकलेगा वो मैं होंगी, और अगर ना भुला पाओ तो समझ लेना तुम्हारी उंगलियों में उस सिगरेट से ज्यादा करीब मेरी उंगलियां हैं। उसी सिगरेट का धुआं बन तुम्हारे साथ रहूंगी जिससे मुझे बहुत नफरत थी। जब थक जाओ और मुझे चूमने का मन करे तो गहरी सांस लेना। तुम्हारे अंदर बैठे धुएं का स्वाद जब होठों तक आ जाए तो समझ लेना मैं हूँ। थैंक यू। बहुत गहरी और बहुत गजब की पोइट्री थी आपकी, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। अतुल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैंने ऐसे सुना था कि पोइट्री या हिंदी लिटरेचर सुंदरता पे ज्यादा होता है। मैंने आज सुंदरता को लिटरेचर करते हुए पहली बार देखा है। क्या बात है, क्या बात है। आपका जो कंटेंट था वो बड़ा डीप है, मतलब बड़ा मंझा हुआ है, ऐसे नौसिखिया टाइप से नहीं है। थैंक यू तो मुझे तो बहुत पसंद आया। थैंक यू सर। जैसे सबने बताया कि बहुत ही डीप था। Thank you, sir. मुझे अभी कुछ दिन पहले ही किसी ने बताया था या फिर रील में मैंने देखा था कि वो इसके 4 या 5 दौर होते हैं। तो कोई स्टोरी में बुनता है वो सारी चीजें, और आपने पोइट्री का सहारा लिया। और पोइट्री सबसे कॉम्प्लिकेटेड कहा जाता है कि आपके पास शब्द बहुत लिमिटेड रहते हैं और आपके पास यहाँ टाइम भी बहुत लिमिटेड था। बावजूद जो खूबसूरती से आपने वो चारों पहलू को छुआ है वो वाकई काबिल तारीफ है। मतलब
रियली अमेजिंग। जो नुआंसेस थे उसमें, मतलब जो इनसिक्योरिटीज वाले पहले वाले में खास तौर पे, वो जैसे चांद सूरज दोनों को ही गुनहगार बता दिया, क्योंकि उससे भी वो डर रहा था। तो बहुत प्यारी चीजें थी इसमें, मतलब इसमें एक प्रॉपर हम डिकोड कर सकते हैं हर एक लाइन को, लेकिन टाइम उतना है नहीं। बहुत ही प्यारा था, बहुत सुंदर, मतलब God bless you. थैंक यू मैम। आप इतना खूबसूरत ऐसे ही लिखती रहो और परफॉर्म करती रहो। एंड वन थिंग आई वांटेड टू से, जो ठहराव है शायद वो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल से आता है, आपको बहुत कम उम्र में आ गया। God bless you. थैंक यू मैम। So the next performer who is going to perform is Geet. Let's welcome her with a huge round of applause. हेलो, गुड इवनिंग जजेस। पहले एक ख्याल के साथ मैं शुरुआत करती हूँ महफिल की। कि सजी है महफिल देखो यारों की, कि सजी है महफिल देखो यारों की, कुछ टूटे दिल की तो कुछ दिलदारों की। मैं गीत, मैं फरीदाबाद से हूँ और मैं एक बेकर हूँ और एक थोड़ा सा लिखने का शौक रखती हूँ। तो पहले एक अपनी छोटी सी नज़्म रखती हूँ कि तेरी हर शय पर मेरी मात भारी है, तेरी हर शय पर मेरी मात भारी है, मैं क्या करूं मुझे जीतने की बीमारी है। कि तेरी हर शय पर मेरी मात भारी है, मैं क्या करूं मुझे जीतने की बीमारी है। और बहुत कर लिया पहले आप, पहले आप, बहुत कर लिया पहले आप, पहले आप, अब आप रुको मेरी बारी है। कि बहुत कर लिया पहले आप, पहले आप, अब आप रुको मेरी बारी है। और सुना था होते थे पहले पुरुष प्रधान समुदाय और समाज, कि होते थे पहले पुरुष प्रधान समुदाय और समाज, मगर अब तो हर क्षेत्र में आगे नारी है। मेरी नजाकत से मेरी उड़ान को ना परखना, मेरी नजाकत से मेरी उड़ान को ना परखना, मैंने भी कर रखी पूरी तैयारी। एक छोटी सी गजल पेश करती हूँ आप लोगों के सामने। कि मोहब्बत में कभी कोई जोर आजमाइश नहीं होती, मोहब्बत में कभी कोई जोर आजमाइश नहीं होती, महबूब जो दे दे उससे कोई फरमाइश नहीं होती। कि मोहब्बत में कभी कोई जोर आजमाइश नहीं होती, महबूब जो भी दे दे उससे कोई फरमाइश नहीं होती। माना कि हक मिलते हैं एक दूसरे से इश्क पे, माना हक मिलते हैं एक दूसरे पर इश्क में, मगर इसमें जिस्मों की कोई नुमाइश नहीं होती। कि माना कि हक मिलते हैं एक दूसरे पर इश्क में, मगर इसमें जिस्मों की कोई नुमाइश नहीं होती। जो हो सच्ची मोहब्बत दिलों के दरमियां, जो हो सच्ची मोहब्बत दिलों के दरमियां, वहां छोड़ जाने की फिर कोई गुंजाइश नहीं। कि जो होती है सच्ची मोहब्बत दिलों के दरमियां, वहां छोड़कर जाने की कोई गुंजाइश नहीं होती। निभानी पड़ती है हर हाल में रीते वफा, निभानी पड़ती है हर हाल में रीते वफा, यूं ही हर मोड़ पे इसकी आजमाइश नहीं होती। कि निभानी पड़ती है हर हाल में रीते वफा, यूं ही हर मोड़ पे इसकी आजमाइश नहीं होती। और बिछड़ जाए अगर राह में कभी दो दिल, और अगर बिछड़ जाए कभी राह में दो दिल, फिर मिलने की आसानी से रिहाइश नहीं होती। कि मिलने की फिर आसानी से रिहाइश नहीं होती। और समझ लो इसे एक पाक सा एहसास गीत, कि समझ लो इसे एक पाक सा एहसास गीत, हर किसी के नसीब में ये रौनक एक ख्वाहिश नहीं होती। कि हर किसी के नसीब में ये रौनक एक ख्वाहिश नहीं होती। आपने गजल पढ़ी है, तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। गजलों में होना चाहिए था तुमको इन दिनों, गजलों के कारोबार में क्या कर रहे हो तुम। मेरे को तो आपका कंटेंट अच्छा लगा और बढ़िया पढ़ा आपने, लेकिन चूंकि एक लिमिटेड टाइम स्लॉट है तो उसके लिए आप चाहते थे और पढ़ना, बट जितना पढ़ा अच्छा लगा। सिर्फ दो ही बातें कहूँगी। अच्छा लगा आपने शतरंज को अपनी पोइट्री में ऐड किया, क्योंकि हार जीत खाली बाहर नहीं होती है। मुझे
और कविताओं में भी होती है और शायद दिल और इश्क में भी होती है। वेरी गुड, थैंक यू। हाय जी, बहुत मज़ेदार था आपको सुनना। जो आपने पॉज लेकर के अप्लॉज बटोरा है वो नहीं, वो आर्टिस्ट में तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है पॉज इस तरीके से लेना पड़ता है, तो वो अमेजिंग था, वो मेरे लिए लर्निंग था कि किस हाँ। I mean back to back इतनी great performance हो गई हैं, so I would also like to know कि कौन किसने ज़्यादा अच्छा किया है from the judges. मैं भी वहीं पे। So let's get the judges' views. From my point of view, out of 10, Palak has got 8 marks and Geet has got 7 marks. So पता नहीं सही है गलत, लेकिन पलक मेरे तरफ से पलक को मिला है 9 और गीत जी 8 मार्क्स। थैंक यू सो मच। पलक जी आपको मिलते हैं 8 और गीत जी आपको मिलते हैं 9, जो आपने एक ये वाला किया ना। सो यहाँ पे 1 नंबर से पलक जी जीत रही है। Okay guys, so moving on. Thank you so much to both of you. So next category, I would like to ask the audience कि आप क्या सुनना चाहेंगे? Okay, so we are going on with the rap. So let's welcome Moin on stage, guys. Give it up for him. बेसिकली जब तक रैप प्ले नहीं हो रहा मैं आपसे कुछ बात करता हूँ। हम सबको डर लगता है किसी ना किसी चीज़ का लाइफ में, आपको भी लगता है क्या? यस। सो बेसिकली जो भी मैं अब परफॉर्म करने वाला हूँ ना, वो डर के ऊपर ही है। सबको किसी ना किसी से डर है, किसी चीज़ का डर, किसी को खोने का डर, तो ये उसी चीज़ के ऊपर है। लगता है डर, ये कैसा सफर, लगता है डर, तू क्यों मैं इधर, हाँ लगता है डर, ये खुद से सवाल है मेरा, बस लगता है डर, लगता है डर कि अनजाने में ना कह दूँ गलत, लगता है डर कि खो दूँ ना तुमको मैं करके अलग, लगता है डर शायद से खुद ये जवाब है मेरा, लगता है डर खुद से मुझको, लगता है डर मुझे तारीफों से, लगता है डर मुझे उम्मीदों से, लगता है डर के हावी ना हो जाए गुम तो मैं पहले से तकलीफों में, लगता है डर मुझे मदहोशी से, लगता है डर मुझे खामोशी से, लगता है डर उन्हें हो ही ना कुछ, ये अकेली जिंदगी बेरुखी है। मैं कहता हूँ तुमसे ये कई बार, तुम कहते हो ऐसा कुछ होगा नहीं, फिर कह दूँ मैं हंस के सही बात, तुम्हारे सिवाय भरोसा नहीं मुझे किसी भी चीज पे, जो भी नजदीक है खुदा वो छीन ले, कैसी तकदीर बस अब तकलीफ है सनब शरीर में मचती है, चुपती है खामोशी सो जानी, दर्द की दवा होगी, जिंदा उस याद की मिट्टी कहाँ होगी, मिली जो राहत दो पल की राहों में वो भी अब धीरे धीरे सिफर ना हो रही, तो लगता था डर सीखा मुझे न जीना यहाँ अकेले मुझे, ये दुनिया है नीच बेईमान सी, क्या जीने दोगे यहाँ अकेले मुझे, तुम नफ्स बन के आए थे साथ में, मैं नफ्स बन के रहूंगा साथ में, बस खेले ना कोई मेरी किस्मत का खेल, हाँ लगता है डर सीखा मुझे, लगता है डर, लगता है डर, लगता है डर, लगता है डर। Peace out. Thank you so much. मजा आ गया मोहित भाई। आपका वाला उतना असरदार मुझे लगा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो बट मुझे अच्छा लगा, लेकिन उतना बिकॉज या तो ये हो सकता है कि उसके पहले गोल्डी इतना बड़ा बेंचमार्क सेट कर गया था। कुछ कहना चाहूँ जी जी जी। बेसिकली गोल्डी भैया ने बेस्ट किया, बट पीछे उनका पूरा ट्रैक चल रहा था, उनके प्रॉपर रॉ वोकल्स नहीं थे वो, थोड़ा सा हो सकता है शायद ये प्रॉब्लम। तो बस वो थोड़ा सा मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि वो बेंचमार्क इतना बड़ा सेट कर गए उसके बाद आप आए हैं, तो एक वजह, बट मुझे थोड़ा सा हल्का सा लगा आपका, बट अच्छा लगा मुझे, मतलब आपका अटेम्प्ट मुझे पसंद आया। थैंक यू सो मच। हाय, गॉड ब्लेस यू। पहले तो शिवर करना बंद कर दो, योर परफॉर्मेंस इज डन, राइट। अभी आई थिंक मेरे जो क्वेश्चन था उसका आंसर मुझे ऑलरेडी आपकी बात में मिला कि देयर इज अ डर, उसमें एक शब्द था भरोसा, योर माय भरोसा, एंड लेटर ऑन यू सेड कि आपको ट्रैक याद ही नहीं रखना है,
whatever happened to your life, जो भी अच्छा बुरा होता है, अगर आप उसे प्रेजेंट में बोल रहे हो, गा रहे हो, तो याद करो, and your performance is good. Yes, I appreciate, and that fear is still in your body. I can see it. So keep doing your best. Thank you so much. ओके, हाय मोइन, MHS स्ट्रीट बॉय, परफेक्ट, बहुत ही प्यारा था परफॉर्मेंस। आपने जो स्टार्ट करा एक अपना नया जॉनरा लेकर के, क्योंकि एक रैप रहता है, एक पोइट्री होती है, उसके बीच वाला जो रहता है ना, वो पोर्शन से स्टार्ट करा था। वो पोइट्री भी नहीं थी, जो बगैर बीट का स्टार्ट करा था। वो मेरे ख्याल से वो ट्रेडमार्क वाला है जॉनरा जो स्टार्ट करा है, वो बहुत प्यारा था। Thank you so much. Let's welcome Prabhat on stage. Give it up for him. स्टार्ट कर दो, कोई बात नहीं। यार मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा जो गाना है उसके 2 पार्ट है। पहला वाला एंजॉय करना, दूसरा वाला सुनना। लेट्स गो। रेडी? मुझे कॉल मत कर, आई बिन बिजी, मेरे शहर आके देख ये सिंसिटी। अरे फाउड़ियां बिके जाने काउड़ी के दाम है, ये घंगोर शहर होता दिन भी नहीं। मुझे कॉल मत कर, आई बिन बिजी, मेरे शहर आके देख ये सिंसिटी। अरे फाउड़ियां बिके जाने काउड़ी के दाम है, ये घंगोर शहर होता दिन भी नहीं। लौटा क्रेजी तू सहेलियों से पूछ, खूनी बंटाना लेके सीन करे कुछ। कटे सर मगर कटे गिरी मूछ, जो फैले ज्यादा उसकी बैंड क्यूट है। ट्रूथ लाए करे सीन पूरा लाए, बस स्कूटी उड़ा दी लोने कहने लगे पायलट। गोले शावर बावे टच लगे माइडस, केम टू रूल मुझे कह दो लियो नाइडस बिच। लगे एक और एक करा मेरा एक मिनट बावे पैसों में आता। एक बार मिल के तुझे बहुत ज्यादा, तभी लोई सोन पापड़ी तू 150 में जाता है। मेरे लेवल पे नहीं आएंगे, मेथड इन द मैडनेस, बार्स की ये साइज से भाई से मैं मारूं और बताता नहीं मैं दाई को। वाइप करूं फ्लोर इनसे लोने लगे लाइज ऑन। कॉल मत कर, आई बिन बिजी, मेरे शहर आके देख ये सिंसिटी। अरे बाउड़ियां बिके जाने काउड़ी के काम है, ये घंगोर शहर होता दिन में नहीं। मुझे कॉल मत कर, आई बिन बिजी, मेरे शहर आके देख ये सिंसिटी। अरे बाउड़ियां बिके जाने काउड़ी के काम है, ये घंगोर शहर होता दिन। रात दिन फिर भी ये करे लौंडा, सोटा का सच न की फेक करे लौंडा। कूल से सिखावा के टेक करे लौंडा, डॉट से इंस्पायर्ड सच्चा हेटर है लौंडा। देर से मैं आता लगे टाइम नहीं बचने में, कौन बने गैंगस्टर में कुछ खबर देंगे, कितने में बिके बता गिने करी शॉट देंगे। नोटों की सलामी मेरा मुंह पे तेरे मुंह देंगे बेटे। मेरा था 10 toes in, मेरा बेस लेवल लगे तेरा काइयो केन, मेरा फेस लगे दुनिया कोशिश पर नहीं काटू बावे जिंदगी है छाइयों में। ये दुनिया साली बोगस फोकस, लॉक्ड अप तो जिंदगी है चौकस। कंधे पे मैं जूसा, सीने पे लटकी हो रहा अच्छा बुरा झाड़ रहा हूँ मैंने फील है मोसेस। रोकी कोरेस लोकी मोरेस, फक मेरे पेनी मगर 36 चौदे जैसे पेपर नहीं बनते, जोड़े मिले जट्टे दा मुकाबला नहीं जाकर। खोजे ना तू चेक कर कैश पावे दिल्ली की, लौंडे दिल्ली के सीने में है दिल्ली नहीं। मैंने संदू पर औजार मेरा इलीगल, बावे हार्ट ऐसी चीज जो कि हिलती नहीं। मुझे कॉल मत कर, आई बिन बिजी, मेरे शहर आके देख ये सिंसिटी। अरे बाउड़ियां बिके जाने काउड़ी के दाम है, ये घंगोर शहर। नहीं चलने दो। मेरे पे होने की बड़ी किताब लाजवाब है लौंडा तेरा लाजवाब, लाजवाब है लौंडा तेरा लाजवाब, लाजवाब है लौंडा तेरा लाजवाब, लाजवाब है लौंडा तेरा लाजवाब। लड़का नया नया शहर था, कंधे पे डाला बैग, सर पे तेल न था स्वैग और बोली में पूरी एक्ट। सपने करने लगा चेस तो फिर बढ़ने लगे केस, लड़का लड़ा पूरी दुनिया से अब देखते ही देख। बावे सजा है खामोशी मेरी चीरती गवाही, मेरा धर्म मेरी करा तेरी डील कायम भाई। तूने बेच के ईमान इज्जत कौन सी कमाई, जब खुद की तेरी आत्मा दे गलियां भाई। यहाँ दलीलें सुनी जाती नहीं, गले में छुरी जाती। खून भरे पेट तो फिर कौन किसका साथी, जख्मों पे रोने वालों का तो दर्द भी नहीं माजी। तो फिर हाथ रख या फिर लगा ले, सिया पसीना कभी नहीं है लिखे मौत के इतिहास।
हवे उल्टी मेरे स्वेटर पे और भारी हाँ, लेकिन स्टेज पे जो चढ़ूं तो फिर छूटे नहीं कोई सांस। तेरे सपनों की जो मरने वाली जिंदा कर दूं लाश लाजवाब। है लौंडा तेरा लाजवाब लाजवाब, है लौंडा तेरा लाजवाब लाजवाब, है लौंडा तेरा लाजवाब लाजवाब, है लौंडा तेरा लाजवाब। तुमने तो गर्दा उड़ा दिया ब्रो, बीच में गाने में जो भी किया, लेकिन जज्बात तो ऐसे डाल दिए, मजा ही आया। क्या कहेंगे तो सर? I'm seriously, I'm a big fan of yours, sir. बहुत अच्छा लगा। Well done. I like your energy. Really top notch थी बिल्कुल, अच्छा लगा। And the breathing you are taking, that's very nice. And जो अतुल जी ने कहा कि लाइक जाने के बाद भी you did so well. It's really difficult इतना लंबा गान करके रखना and you make it possible कि लाइव फ्लेक्चर होने के बाद भी नहीं मिस हुआ, एकदम से मिस कर जाते हैं। बिकॉज एक इमेज चल रही होती है, बीइंग अ पोएट आई कैन अंडरस्टैंड, एक इमेज चल रही होती है, जैसे जैसे आप लिखते हो वो कॉपी दिख रही होती है, बट इट्स ओके, यू डिड सो वेल, वेल डन, गॉड ब्लेस यू। मतलब जो पोटेंशियल्स है आपके कंटेंट में वो दिख रहा है, उसको आउटस्टैंडिंग बनाने के लिए जो चीज आप कर सकते हो वो यही है कि ब्रीदिंग पे काम। अदरवाइज फैंटास्टिक ब्रो। Thank you, yeah. Thank you, Prabhat, for such an amazing performance. I would also like to call Moin on stage. I hope the judges have given the scores and let's see the result. सो मैंने मोइन को दिए हैं 9 परफॉर्मेंस और प्रभात को 8। I have given 6 points to Moin, well done, keep doing best, and Prabhat ji ko 9. From my side, Moin Hussain 6 and Prabhat Bhai 9. So the clear winner is Prabhat Bhai. So, from the category of storytelling, let's welcome Risha on stage. Give it up for her, guys. सो मेरा नाम ऋषा है और मैं मेरठ से हूँ एंड वेरी मच गुड इवनिंग टू ऑल द जजेस। पहले मैं कुछ ऐसा कहना चाहूँगी कि नौसिखिया हूँ तो चाहूँगी कि अपनी तालियों से मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं, और अगर कुछ गलती कर दूँ तो दिल पे ना लें। तो कुछ इस तरीके की भूमिका बनाना चाहूँगी। शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक तरफ मंदिर था। शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक तरफ मंदिर था, जहाँ सुबह सुबह घंटी की आवाज, अगरबत्ती की खुशबू, जहाँ सुबह सुबह घंटी की आवाज, अगरबत्ती की खुशबू और शांति का एहसास होता था। उसके बिल्कुल सामने एक ऐसा बाजार था जहाँ रोशनी तो बहुत थी, जहाँ रोशनी तो बहुत थी, पर रोशनी में भी अंधेरा बसा था, जिस्म का बाजार। तो जरा गौर फरमाइएगा, एक तरफ मंदिर, एक तरफ मंदिर, शंख की आवाज, दूसरी तरफ बाजार, खामोश सा राज। एक तरफ मंदिर, शंख की आवाज, दूसरी तरफ बाजार, खामोश सा राज। एक तरफ आरती, एक तरफ अंधेरा, एक तरफ आरती, एक तरफ अंधेरा, दोनों में बस इंसान का चेहरा, दोनों में बस इंसान का चेहरा। वहां हाथ जुड़ते, वहां जिस्म बिकता, वहां हाथ जुड़ते, वहां जिस्म बिकता। दोनों जगह लोग अपनी कहानी लिखते, दोनों जगह लोग अपनी कहानी लिखते। क्या पाप है क्या पुण्य है ये कौन बताए, क्या पाप है क्या पुण्य है ये कौन बताए। जहाँ रूह तड़पे वही सच समझ आए, जहाँ रूह तड़पे वही सच समझ आए। मंदिर के सामने जो बाजार बसा है, मंदिर के सामने जो बाजार बसा है, शायद इंसान का सबसे बड़ा खुदा है, शायद इंसान का सबसे बड़ा खुदा है। शुक्रिया।
क्या लिखा आपने, क्या जबरदस्त, मतलब क्या पिक्चराइजेशन करवाई। एक तरफ मंदिर, एक तरफ अंधेरा, मतलब आरती, अंधेरा। थैंक यू सर। अतुल सर क्या बोलेंगे? तो मुझे थोड़ा सा हल्का लगा आज का। अच्छी कोशिश थी, 2 चीजें बोलूंगी। Thank you, आपने ma'am. बहुत अच्छी इमेजिनेशन बनाई, मंदिर की, अगरबत्ती थी, शंखनाद था। वहीं आपने एक अलग बाजार बताया और उस बाजार में खाली कुछ इंसान गिनवाए, ना उसमें घुंघरू थे, ना रंग बिरंगी चुनिया थी, ना आवाजें थी। तो बस थोड़ा सा वही ऐड ऑन की उम्मीद है। ओके हाय रिसा। हेलो सर। बहुत बढ़िया। कब से आप कर रही हैं स्टोरी टेलिंग? और स्टार्ट किए को ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 महीने के आसपास हो। क्या बात है, फिर तो बहुत जबरदस्त कर रहा है। लेकिन सर यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मेरा मानना ये है कि एक आर्टिस्ट वही होता है, एक कलाकार वही होता है। एज मैं पेंटिंग्स भी करती हूँ और मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में भी हूँ। एक कलाकार वही होता है जो एक कला को आकार दे सके। आप लोग जजेस हैं, आप लोगों ने मेरी कमियां बताई, मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगी, लेकिन मुझे खुद से पूरा सेटिस्फेक्शन है कि मैंने अपनी कला को आकार दिया। मैम मेरे को बिल्कुल भी गलत नहीं लगा, मेरे को बुरा नहीं लगा, ठीक है। एक स्टूडेंट के लिए, एक कलाकार के लिए एक गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। तो आप सब लोग यहाँ पे मेरे गुरु हैं और जो वो पीछे बैठी है, मैं उन लोगों की जान नहीं हूँ, वो लोग मेरी जान है। ऐसे जैसे आप बोलते हैं। मुझे कुछ भी कहीं से कहीं तक भी कुछ भी बुरा नहीं लगा, मैंने कुछ भी फील नहीं किया, बल्कि आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस मंच के लायक समझा। यार तरीके, आपका बोलने का तरीका मुझे बहुत प्रभावित किया। आप नेता भी बन सकते हो। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो मेरी बारी रह गई। हाँ जी, अरेशा, वाकई आपने तो बोलती बंद कर दो, कहूँ क्या भला। वाकई मतलब मैं कह रहा था कि अभी जो आपने देख करके पढ़ा, उसके बजाय अगर अब मैं आपको इम्प्रॉम्प्टू दे दूं ना, एक सिचुएशन, एक सिनेरियो दे दूं कि आप इस पे कहानी बना दो कि यहाँ पे लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन आप कहानी बना सकती हैं इम्प्रॉम्प्टू, यहीं पे खड़े ही खड़े अपने दिमाग से। क्योंकि 4 महीने में स्टेज को ओन कर लेना कि भाई ये स्टेज मेरा है, तुम कौन होते हो बोलने वाले, वो कतई एकदम खतरनाक है। मजाक से हट करके तो थैंक्स और बहुत तरक्की करेंगी फॉर श्योर। थैंक यू सो मच एंड वेरी मच थैंकफुल टू अतुल सर। इनकी वजह से मतलब सबसे पहले उन्होंने ही मेरे को ये स्टेज दिया। वेरी मच थैंकफुल अतुल सर। Thank you so much, Risha ji. Now, let's call next performer on the stage. Give it up for Rishika Garg. मैं कहानी सुनाने वाली हूँ एज यू ऑल नो। और कहानी की सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको ध्यान से सुननी होती है। 1 मिनट भी अगर आपने थोड़ा सा इधर उधर गए तो कहानी गई। तो दैट मीन्स आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा सबको, है ना। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो बाहर बन के छाए हो। सितंबर 2021 में एग्जैक्टली यही फील करी थी मेरी नानी। एक्चुअली 2019 कोविड के बाद से ना मेरे नानू और नानी की लाइफ ऑलमोस्ट 4 दिवारी की होके रह गई थी। अब ना वो एक दूसरे के साथी भी थे, एक दूसरे के सुख दुख के साथी। नानी नानू के लिए गरम गरम फुलकियाँ बनाया करती और नानू ना वो सुबह सुबह की जो गरम चाय होती है वो बनाया करते। इन शॉर्ट अब ना एक दूसरे के लिए सिर्फ वही थे, ना बच्चे, ना बड़े, ना पड़ोसी, ना कोई रिश्तेदार। आमने सामने सिर्फ वो 2 बैठे हैं। एक दिन ना नाना जी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई तो कॉल आया कि तबीयत थोड़ी खराब है, आ जाना। हमें लगा वायरल जैसा कुछ हुआ होगा। मम्मी मासी सब उनसे मिलने गए और हमें अभी भी यही लग रहा है कि नॉर्मल होगा। वहाँ गए तो जाके पता चला कि ना तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब थी, इतनी कि वो बेड से उठ नहीं पा रहे थे। फिर मतलब वो सिर्फ इतना बोल पाते थे ना कि जितना एक आधी उर्दी में बाइट्स होती है।
वो मतलब हर दिन मम्मी का सुबह सारा काम ख़त्म करके, मासी का सुबह सारा काम ख़त्म करके उधर जाना और वहाँ बैठ के उनकी सब सेवा करना। पर कहते हैं ना कि बच्चे भी साथ छोड़ देते हैं, पर जो ये जीवन साथी होते हैं ये हमेशा साथ होते हैं। तो अब नानी उनके पास बैठी रहती, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें दाल का पानी चाहिए, पानी चाहिए, फ्रूटी चाहिए। जब वो हर चीज़ मुंह से बाहर निकाल देते तो वो सब कुछ उनके लिए तैयारियां कर रही होती थी, और ये सब भी जब उनसे देखा नहीं जाता ना तो वो दूसरे कमरे में जाके रो लिया करती थी, पर वो उनके सामने अपना एक भी आंसू नहीं बहाती। हम सब उनसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ है, क्यों नहीं जाना चाहते। वो अपने डेथ बेड पर है, उनकी आखिरी सांस चल रही है, पर वो जाना ही नहीं चाहते। उनसे पूछा मामा ने एक दिन, क्या हुआ है, क्यों नहीं जा रहे, कुछ प्रॉब्लम है, किसी से मिलना है, बताओ ना। तो उन्हें मिलना था किसी से, उसे भी बुलाया गया, वो मिले। फिर एक दिन नानी ने कहा, अब क्या हो गया, अब क्यों नहीं जा रहे, ऐसी कौन सी दूसरी पटा रखी है जिससे मिलना बाकी है। अब वो ठहरे प्यार में पागल मेरे नानू, वो बता ही नहीं रहे थे कि वो क्यों नहीं जाना चाहते हैं। फिर एक दिन ना बहुत सब जोर देके पूछ रहे थे तो उन्होंने ऐसे इशारा किया। अब उस उंगली के पास नानी थी, वो उनके लिए नहीं जाना चाहते थे। एक वक्त होता है कि जब ना हमारी सांसें हमें जोर दे रही है कि तुम्हें छोड़ के जाना है यार, पर वो वक्त हम हमसे मतलब खुद से ज्यादा अपने लाइफ पार्टनर को देना चाहते हैं, वो वक्त था। और तब ऑलमोस्ट मेरी नानी ना इस जोन में थी कि ओके, तो एक रात नानू ऐसे ही लेटे हुए थे और उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली जब उन्होंने कहा कि जाओ जाओ, मैं सब देख लूंगी, बच्चे हैं यहाँ, मेरा ख्याल रखेंगे। तो वो ऑलमोस्ट इस जोन में थी। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो ना हो। और मेरे नानू ने उस वक्त आखिरी सांस ली। पता है जब कोई शख्स चला जाता है तो कैसा लगता है, पता नहीं कैसा लगता है। शायद मैंने वो फेज कभी महसूस ही नहीं किया जब जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ वो चला जाए। और मैंने एक चीज रियलाइज करी कि उस वक्त ना नानी जो उन्हें रोकना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी वो चले जाए क्योंकि वो दुख में है, और नानू जो जाना ही नहीं चाहते थे क्योंकि वो उनका साथ निभाना चाहते थे। पर जब वो चले गए तो वो बहुत अकेली हो गई थी और शी वाज ऑलमोस्ट दैट जोन कि तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे शिकवा नहीं तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं। और 2 साल बाद सेम वही प्रोसीजर फॉलो करते हुए ना खाना खाना ना पानी पीना, वो भी चली गई थी उनके पास। I want to dedicate 2 lines for my नानू and नानी कि एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। Thank you so much. राशिका जी, आज तो मज़ा आ गया। पिछली बार से तो बहुत अमेजिंग था, ऊपर से आपके नाना नानी की स्टोरी हमें जानने को मिली। ये रियल है क्या? Yeah, that's क्या बात है। तो बस वो सॉन्ग्स मैंने खुद से एडवन करे, ऑफ कोर्स इट्स नॉट पॉसिबल। असली प्रेम कहानी तो वही थी कि तुम जाओ मैं देख लूंगी। हाँ,
वही थी। नहीं, बहुत बढ़िया था, बहुत मजा आया मुझे तो। अतुल सर, आपके कितने मामा हैं? हाँ, 2 हैं, वो भी पास में थे। सब और मासी कितनी है? 2। तो फिर तो लगता है कि नाना नानी में प्यार तो अच्छा था। ये क्या बात होती है, हम भी 4 भाई बहन हैं ऐसे तो, इससे थोड़ी ना डिफाइन होता है प्यार। काफी सुंदर था और मैं रोई Because I could see that. मैं रोई इसलिए क्योंकि मेरे मम्मी पापा बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही गए हैं और मैं रिलेट कर पाई उस चीज़ को। बहुत सुंदर था। आपने गानों का सिलेक्शन जो अपनी तरफ से डाला, ऑफ कोर्स वो बहुत ही प्यारा था। 2 चीज़ें कहना चाहूँगी कि जिस कॉन्वर्सेशन की अभी बात हो रही है, ये आपने शायद अपना प्रोस्पेक्टिव दिखाया कि कैसे आपके नाना नानी गए। आई थिंक जो मैसेज है वो ये है कि थोड़े से डायलॉग्स भी नाना के जो आप और इनरिच करके बोल सकती हो और नानी के। बट मैं रोई इसलिए मैं कह सकती हूँ कि मेरे को बहुत टचिंग लगा एंड आई लव इट ऑब्वियसली। आई स्वेयर कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत तगड़ा है। जैसा आपने बताया कि आपने 50 मिनट का पहले भी कर रखा है और सेट उसके अलावा अच्छे अच्छे स्टोरी टेलर ने अप्रिशिएट करा है, वो चीज़ें दिखी हैं आपके परफॉर्मेंस में दिखी हैं। तो कीप इट अप एंड ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you so much, Rishika, for such a mesmerizing performance. And I would like to call Risha on stage. Most good. सो रसिका, मैंने रसिका को दिए हैं 7 और ऋषा 5। थैंक यू। रशिका जी आपको मिले हैं 8 और ऋषा आपको दिए हैं 6। अच्छी कोशिश थी। रशिका को मैंने 7 एंड ऋषा को 6। So the clear winner is Rashika Garg and Risha जी, आपको एक और राउंड है आपका पोएट्री राउंड, ठीक है? Thank you so much, Thank you guys. so much. So now we are doing poetry again. So the person who is going to perform next is Kalpana. Let's give it up for her. तो थोड़ी सी नर्वस होंगी मैं, वो दिखेगा भी मेरे फेस पे, तो आप प्लीज़ उसे इग्नोर कर देना। मैं कोशिश करूँगी अपने एंड से बेस्ट करूँ। तो बेसिकली क्या होता है, जो बॉयज़ होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं एज कम्पेयर गर्ल्स जो होती है वो बहुत जल्दी एक्सप्रेस कर देती है। तो मैंने यही लिखा था कि जो बॉयज़ की एक्सपेक्टेशंस होती है अपनी लाइफ पार्टनर को लेके, फ्यूचर लाइफ पार्टनर को लेके, वो क्या होती है। तो आप सुना। चलो मैं आज तुमको सच बताता हूँ, क्यों मैं तुमको इतना चाहता हूँ। तुम हो तो मेरे ख्यालों में, पर तुम्हें हकीकत बनाना चाहता हूँ। मेरी सुबह की जो शुरुआत होगी तुम्हारे हाथों में मेरे लिए चाय की प्याली और होठों पे मीठी सी मुस्कान होगी। तुम कुछ यूँ मेरे करीब आकर बैठोगी, सुनो ऑफिस जाना है जल्दी उठो ना, कुछ इस तरह मुझसे कहोगी। मेरे लिए खाना बनाओगी, मेरे घर को अपनी मुस्कुराहट से सजाओगी। होंगे जब मेरी आंखों में आंसू तो मुझे अपने गले से लगा लोगी। मेरे हर छोटे बड़े फैसले में तुम मेरा साथ दोगी और मैं भी अपनी जिम्मेदारियां कुछ इस तरह निभाऊंगा। जब भी तुम्हारा मन खराब होगा मैं तुम्हें हंसाऊंगा, किचन में तुम्हारा हाथ बटाऊंगा, तुम्हारी मनपसंद जगह तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। तुम्हारे सपनों की उड़ान में मैं बेड़ियां नहीं लगाऊंगा, तुम जो उड़ना चाहो तुम्हारे पंख बन जाऊंगा। सुनो, तुम कोई ख्याल नहीं मेरी जिंदगी हो, तुम कोई ख्याल नहीं मेरी जिंदगी हो। जिस दिन मिलोगी ना उस दिन तुम्हें सब ये बताऊंगा। कुछ और भी लिखा था मैंने पापा के ऊपर। क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनके बिहेवियर में चेंजेस आते रहते हैं। तो बस उस पर ही कुछ लिखा था। कहते हैं कि पापा कभी बदलते नहीं हैं, पर शायद हम उन्हें ध्यान से देखते ही नहीं हैं, राइट। तो मैंने अपने पापा को, मैंने जो ऑब्जर्व किया, उनका जो बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, मैंने बस वही जाहिर करने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोग रिलेट कर पाएंगे इसको। पापा थोड़े बदल गए हैं। वो पहले
कभी छोटी सी बात पर नाराज हो जाते हैं तो कभी बड़ी से बड़ी बात भी चुपचाप सह जाते हैं। कभी भूख होने पर खाना नहीं खाते हैं तो कभी जिद करके अपने लिए कुछ खास बनवाते हैं। बीमारी में दवा से दूर भागते हैं लेकिन काम पर जाना अपना फर्ज समझते हैं। कभी बच्चों से मासूमियत ओढ़ लेते हैं तो कभी उम्र की खामोशी में खुद को समेट लेते हैं। कभी कभी बहुत बातें करते हैं और कभी कभी किसी से कुछ नहीं कहते हैं। न जाने क्यों वो ऐसे होते जा रहे हैं। शायद उनके और मेरे बीच उम्र के फासले बढ़ते जा रहे हैं। दो लाइन और। तो कुछ ऐसे है कि क्या होता है कि कोई हमारे साथ है फिर भी वो अपने पास में जी रहा होता है। तो सिर्फ दो लाइन। न जाने कैसी मोहब्बत वो मुझसे करता है, न जाने कैसी मोहब्बत वो मुझसे करता है। सीने से मेरे लगकर बातें अपनी एक्स की करता है। मैं सुनती हूँ दिल पर पत्थर रखकर, मैं सुनती हूँ दिल पर पत्थर रखकर, क्योंकि मुझे उसे खोने से डर लगता है। मजा आ गया। शुरुआत करते हैं तेजस भाई से। मेरे ख्याल से जो हम राइडिंग के पीछे भागते हैं ना कि गाएगा, मतलब गाएगा के बाद हम गा को ले लेते हैं कि ये तो फिक्स है, इसके पीछे में अटैच करते जाना और ये रैप में भी है, पोएट्री में भी है। तो मेरे ख्याल से वो हमें बांध के जाना है कि हमें गा रखना है। अब इस वर्ड के अराउंड ही हम तो चीजें चुन सकते हैं उसके पीछे वाला। तो मेरे ख्याल से उसको आप ब्रेक कर सकती है जो कि और बेहतरीन बना सकता है। क्योंकि वो स्टोरी आपने स्टार्ट करी थी, एक सिंपल सी स्टोरी बता रही थी कि वो अपने पत्नी से क्या एक्सपेक्ट करता है। हाँ, तो वो गाना की वजह से मेरे ख्याल से उसने थोड़ा सा इम्पैक्ट करा है उस स्टोरी उस पोएट्री को और बेहतरीन होने से। तो उस चीज में आप बदलाव कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी बहुत ही आपने बॉय का प्रोस्पेक्टिव क्यों चूज किया टू राइट योर पोएट्री? व्हाई नॉट योर ओन साइड कि मैं साड़ी पहन के और मैं ये करूं? टू बी वेरी ऑनेस्ट मैम, ये मैंने अपनी फीलिंग्स ही लिखी है कि जो मेरा फ्यूचर पार्टनर होगा वो मतलब मुझे ऐसे डील करेगा। वो मतलब ना मतलब मैं तो उसके लिए वो सब करूंगी जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, बट मैं उससे भी एक्सपेक्ट करूंगी कि वो ही सारी चीजें मुझे करे। तो मैंने अपना ही लिखा है बेसिकली, इसको नहीं लिखा। वो दिख रहा था बस उसमें आप नहीं थी वो। दैट्स गुड। मैम गॉड ब्लेस यू बोल दीजिए। God bless you. May Mahadev bless you. आप अपने पार्टनर को देखती हैं, आपको हंसाएंगे, है ना? मजा आया मुझे तो, बहुत मस्त था, अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you very much. Now let's move on to the next performer. Let's welcome Munish on stage with a huge round of applause. थैंक यू मनीष भाई। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मनीष है और लगभग मैं यहाँ पे 250 किलोमीटर दूर से आया हूँ। तो आप लोग मुझे सुनना, बस बहुत अच्छी अच्छी शायरी आपको सुनाऊंगा। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा जहाँ से मैंने पिछला स्टार्ट किया था, या फिर अगर आप लोग चाहें तो मैं कुछ कॉमेडी से स्टार्ट करता हूँ। आप जो चाहो वो। अभी हम स्टेशन पे थे, मेरा दोस्त भी मेरे साथ आ रहा था, मैंने उसको घर भेज दिया। मैंने कहा बेटा तुम घर जा। बोला क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोग ट्रेन से उतरे और आगे रोने लगा। मैंने कहा क्या हुआ? एक लड़की उसमें छेड़ दी थी। मैंने कहा भाई क्या हुआ, तुझे क्यों मारा सब लोगों ने? बोला अभी ये लड़की फटी धरी थी यार, जरा सी चूक गई, मैंने तो बस पूछा ही था, सीधे मुंह पे थूक गई। अब मैं अपना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? आप लोग थोड़ा हंस लीजिएगा, मेरी शायरी को सुनिएगा। कैसे पीऊं मैं इसके जहर को, कैसे पीऊं मैं इसके जहर को, तुम मुझे ये जहर पीना भी सिखा देते। इश्क मोहब्बत वफा, इश्क मोहब्बत वफा सब सिखाया तुमने, तुम मुझे अपने बगैर जीना भी सिखा देते। तुम मुझे अपने बगैर जीना भी सिखा देते और इश्क का अंजाम सब मालूम था तुम्हें। इश्क
इश्क का अंजाम सब मालूम था तुम्हें इश्क, तुम इश्क मुझे इश्क का आईना भी दिखा देते, तुम इश्क मुझे इश्क का आईना भी दिखा देते। और एक शायरी और है कि वो मेरी दुनिया है मैं उसके लिए जहान मिटा दूंगा, वो मेरी दुनिया है मैं उसके लिए जहान मिटा दूंगा, अगर उसको चुभेगा आसमान तो मैं आसमान मिटा दूंगा। उस पे मर्दानगी दिखाने वालों भूल कर भी भूल ना कर देना, उस पे मर्दानगी दिखाने वालों भूल कर भी भूल ना कर देना, मुझ पे मर्दानगी दिखाने वालों भूल कर भी भूल ना कर देना, ये मेरा मशवरा है अन्यथा मैं तुम्हारा खानदान मिटा दूंगा। मैं आपको पहले अपनी गजल से जोड़ता हूँ, उसके बाद एक शायरी और सुनाऊंगा। गजल है कि मैं उम्र भर जिसकी चाह में रहा, मैं उम्र भर जिसकी चाह में रहा, ना जाने वो किसकी पनाह में रहा, बसर की जिंदगी क्यों हमने जुदाई में, बसर की जिंदगी क्यों हमने जुदाई में, फैसला हमारा जब हाँ में रहा, फैसला हमारा जब हाँ में रहा, क्यों हमारी बसले हयात ना हुई, क्यों हमारी बसले हयात ना हुई, क्यों हमारा जीवन इसी जहां में रहा, क्यों हमारा जीवन इसी जहां में रहा, खुदा से मैंने इश्क ही तो मांगा था, खुदा से मैंने इश्क ही तो मांगा था, खुदा का फैसला भी ना में रहा, खुदा का फैसला भी ना में रहा, जिसने मुझको जान से मार दिया है, जिसने मुझको जान से मार दिया है, क्यों वही शख्स मेरी जान में रहा, क्यों वही शख्स मेरी जान में रहा, प्यार तो मुझे सभी ने दिया मगर, प्यार तो मुझे सभी ने दिया मगर, दुलार तो बस मेरा मेरी माँ में रहा, दुलार तो बस मेरा मेरी माँ में रहा। और एक शेर है कि अभी मैंने कल लिखा था, किसी ने मुझे कहा था कि आप कुछ लिख दो, तो मैंने लिखा था कि अंधेरे में रोशन एक चिराग हो तुम, अंधेरे में रोशन एक चिराग हो तुम, चांद भी जल जाए ऐसी आग हो तुम, खुशबुएं हजारों हैं इस जमाने में, खुशबुएं हजारों हैं इस जमाने में, यकीनन महक बहुत लाजवाब हो तुम, यकीनन महक बहुत लाजवाब हो तुम, किसी को मिल गई हो यूं ही चलते चलते, किसी को मिल गई हो यूं ही चलते चलते, किसी से पूछो किसी का ख्वाब हो तुम, किसी से पूछो किसी का ख्वाब हो तुम, ना समझ हैं तुम्हारी कद्र ना करने वाले, ना समझ हैं तुम्हारी कद्र ना करने वाले, हमसे पूछो हमारा इलाज हो तुम, हमसे पूछो हमारा इलाज हो तुम, महक इतनी प्यारी है क्यों तुम्हारे आने की, महक इतनी प्यारी है क्यों तुम्हारे आने की, बगीचे से आ रही हो या गुलाब हो तुम, बगीचे से आ रही हो या गुलाब हो तुम, तुम्हें पढ़कर ही रंगे मोहब्बत को सीखा है, तुम्हें पढ़कर ही रंगे मोहब्बत को सीखा है, मेरा यकीन करो मेरी इसके किताब हो तुम, मेरा यकीन करो मेरी इसके किताब हो तुम। और एक शेर और कि मेरी आंखें भी जलती हैं मुझे भी भूख लगती है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हर कोई स्ट्रगल करके पहुँचा है आप लोग, और हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मेरी आंखें भी जलती हैं मुझे भी भूख लगती है, मुझे मेरी आंखें भी जलती हैं मुझे भी भूख लगती है, मैं कब आराम करता हूँ थकावट खूब लगती है, यूँ जिम्मेदारियाँ हैं सर कहीं पे रुक नहीं सकता, ये जिम्मेदारियां हैं सर कहीं पे रुक नहीं सकता, मुझे तो ये चटकती धूप भी महबूब लगती है, मुझे तो ये चटकती धूप भी महबूब लगती है। और एक और है कि तुम किसी की आगोश में आके बदले हो, तुम किसी की आगोश में आके बदले हो, तुम तो पूरे जोश में आके बदले हो, मजबूरियां कहाँ थी सब बहाने थे, मजबूरियां कहाँ थी सब बहाने थे, यार तुम तो पूरे होश में आके बदले हो। थैंक यू, आप लोगों ने बहुत प्यार से। थैंक यू सो मच ब्रो, मजा आ गया। अतुल सर, आपकी शक्ल अजिंक्य राणे को देखा है आपने? अजिंक्य राणे दो ही एडवाइस है अगर आप कर रहे हैं तो, एक तो उच्चारण ठीक करें और दूसरे शायरों को सुने ज़्यादा से ज़्यादा, और बाकी तो अच्छा था, मुझे तो अच्छा लगा। मनीष अच्छी कोशिश थी, हम हंसे भी मुस्कुराए भी। आई एग्री विद अतुल जी, सीख रहे हैं तो आप उसमें ठहराव और चोट का ध्यान रखिए कि आपको कौन से शब्द से सामने सुनने वाले को चोट पहुंचनी चाहिए। बहुत खूबसूरत था। आपका जो भी परफॉर्मेंस रहा उस टाइम में हम तो जुड़े हुए थे, एक के बाद आप दूसरा स्टार्ट कर रहे थे, फिर भी हम कनेक्ट कर रहे थे, तीसरा स्टार्ट कर रहे थे, तभी कनेक्ट कर रहे थे, तो मेरी तरफ से तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा। थैंक यू मनीष फॉर सच अ, यही होता है कि मतलब ऑडियंस कनेक्ट करे, है ना? थैंक यू, thank you for such a wonderful performance. I would like to call Kalpana ji on stage.
Now let's have the judge score. मुनीष, मैंने 9 नंबर दिए हैं और कल्पना जी आपको 6 नंबर। थैंक यू। तो अनफॉर्चुनेटली दोनों को ही 8-8 मिले हैं। गॉड ब्लेस यू, मेरी वजह से तो हो गया है। अब नेक्स्ट सर। कल्पना जी 6 नंबर और मनीष भाई 7। So the clear winner is Manish Bhai and Kalpana ji. बहुत मजा आया। Thank you so much, guys. Okay, so let's move on to the next category. So from the rap category now will be performing Pushkar. So let's give it up for him. यो कैसे हो भाई सारे? बढ़िया भाई, कैसे हो? भाई तो मेरा नाम है पुष्कर और स्टेज पे मेरे लिल्ली गाने। Hey yo, yeah, Lily got on the mic, boys, straight up. Yeah. अब ले तो कलमिया गन से तेरी तेरी पे हाथ जोड़ मन से और बाप के सामने जरा ढंग से तुझे झुका हुआ जब बेटा फन में ये बीट मुझे हरदम नचा दे च्युइंगम चबा के हेटर्स की जला के प्रोटेक्शन पहना के इनको नचा देना बढ़ेगी जीडी पे इन्हें मजे भी दिला दे लिल्ली कांते ली तो के शहर से अब बीट पे मैं चढ़ूंगा फैल के लिरिक्स के बोल में लिखूंगा गाने में तैर के और हम ना भरोसे भी प्लान के लिल्ली कांते ली तो के शहर से अब बीट पे मैं चढ़ूंगा फैल के लिरिक्स के बोल में लिखूंगा गाने में तैर के और हम ना भरोसे भी प्लान के तेरी गुद्दी में लगा तो मैं चौक ये घर की बीट मैं करता नहीं शौक सो के पति देके छोड़ देते दिल्ली के कॉप्स आके नीचे लड़क चाओ जो बने मेरी सांसें बड़ी लंबी दबी दिल्ली तो की हवा गंदी वक्त नहीं बोल जाती बातें तूने वही करती बातें करे कुछ ढंग के लोग मेरा पूरा बंगी चाट पियो खाट पे जुता है कहने टेप दमी शाम की काम के नाम की आंधी से रैप पे टक्कर में घुस जाओ अब काम ले ऐसे तेरी डूब जाएगी नो मेरे जैसा रैप करना तो बचो जाओ बिल्कुल के नाम पे हक के जाते इंग्लिश में पूछो तो फक बताते काफी मेहनत करी सब लोग बताते तू पैर की दूध तुझ पे चढ़ के जाते भाई के मैटर में खड़े जिस फ्रिक्शन नशे का नहीं मुझे रैप का एडिक्शन माइक पे आके मैं कर देता एक्शन मैंने छोड़ तेरी बनी मांग रही सेक्स आई एम सॉरी मैं पुश करे घर पर स्टेज पे खड़े के लिए दिखाने गा रहे मुंह चला रहे हम काम बना रहे लीक इसकी टेंशन विस्पर लगा ले ऑन वीडियो देख के हाथ चलाते जैसो मॉल हम वैसे डर जाते सर झुका के हम लिंक नहीं बनाते बेटा गंजे होने से जॉनसन नहीं बन जाते हम तो अच्छे बरसात के गंदे हैं जहाँ पे रकम आप खुल के पड़ते हैं कर्मों से देख मुझे शकल से बोलने लगते हैं तेरी गली में शुरू है घुटती तेरे साथ वाली सर मुझे हिट देती तेरे मुंह में बने अच्छे पिट मुझे दुखती मेरे अखाड़े में देख कैसे सिगरेट जलती तड़बल मचे फटने को हो रही धरती रैप के मंदिर में बजा के घंटी कॉल पे हाजिर हो भाई मेरा बंटी तेरी गानों में दे दो सैतों की डंडी लिल्ली कांते दो के शहर से अभी पे मैं चढ़ूंगा फैल के लिरिक्स के बोल में लिखूं गाने में तैर के और हम ना भरोसे भी प्लान के लिल्ली कांते दो के शहर से अभी पे मैं चढ़ूंगा फैल के लिरिक्स के बोल में लिखूं गाने में तैर के और हम ना भरोसे भी प्लान की क्या दिल्ली तो श्रेयर मेरे भाई सारे प्रेम बंटी काजू दिल्ली दो या हल्के में ले नहीं भाई कभी दिल्ली दो पीस या थैंक यू सो मच आई एम सो सॉरी थोड़ा सॉरी भाई सॉरी बड़ा मजा आया। थैंक यू सो मच भाई नो इन तुम्हारे स्टाइल में मजा आया। थैंक यू भाई थैंक यू You know, एक अंगुली यहाँ पे इट्स अमेजिंग Thank you, ऊपर से thank तुम you. कार्तिक आर्यन जैसे bro well the best part is like when you dance bro it's amazing thank you so let's take some आपकी वीडियो देखी है मैंने वो लेट्स गो भाई गुल्ली भाई फुल ड्रिल स्टेप भाई तगड़ा भाई और क्या करते हो ब्रो आप पुष्कर मैं जॉब करता हूँ और मेरा कॉलेज चल रहा है अभी फिलहाल एक से साथ में हाँ वाओ और बस थोड़ा रैपिंग पे फोकस कर रहे हैं पर बहुत बढ़िया कर रहे हो पिछले ये वाला तो मतलब मेरे को मैं इतना फ्लो नहीं कर पाया लेकिन पिछले वाले में तो मुझे मजा आया पिछले वाले में मैं सोच रहा था मैंने कहा कुछ रोमांटिक करते हैं वापस लेकिन वही है भाई जब अपने हुड की बात आती है ना भाई आज मतलब दावेदारी रखने आए थे तुम्हें चलो बहुत बढ़िया अतुल सर क्या कहेंगे ये रेप आप कब से कर रहे हो रैप मेरे को 5 साल हो गए ये दिल्ली दो का क्या फंडा है यार दिल्ली तो मेरा होड है जहाँ से मैं आता हूँ मैं उसे रिप्रेजेंट करता हूँ कहाँ है दिल्ली गेट ITO अच्छा ITO उसको दिल्ली दो बहुत सारे लोग जिम करते रहते हैं सर
बॉस आपका जो कॉन्फिडेंस है वो तो गजब का है। जब आप स्टेज पे आए और उसके बाद आपने डांस वगैरह का मूव भी जो एक दो किए आपने, मुझे तो अच्छा लगा, मैंने एंजॉय किया आपका। मुझे समझ घंटा नहीं आया पल्ले नहीं पड़ा, बट मुझे कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल सॉरी मत बोलना कि इसमें अब्यूजिव वर्ड्स है, बिकॉज वो स्किप हो रहा है, वो समझ ही नहीं आया, तो वो मिला ही नहीं मुझे। तो मुझे आई वाज कीप फाइंडिंग कि कुछ तो मिलेगा, बट आई डिडंट फाइंड आउट एनीवेज। एंड द वे यू स्टेप हियर, इट वाज अमेजिंग, बहुत खूबसूरत था। थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड योर एनर्जी। बट एक क्वेश्चन है, ये इट्स स्टाइल और जस्ट होल्डिंग योर स्पेक्स? ये स्टाइल। ओके, एक छोटा सा सवाल है, बीइंग योर रैपर, ये रैपर्स इधर से उधर भागते क्यों रहते हैं, मतलब चलते क्यों रहते हैं? और एनर्जी के लिए? हाँ मतलब ऐसा मैं बताऊं अपनी साइड से, तो ऐसा तो थोड़ा कंफर्टेबल रहता है फुल, मतलब फटने को मिलता है ना पूरा स्टेज, तो मतलब तगड़ा वाला सीन होता है। ये शब्द मुझे समझ में आया। गॉड ब्लेस यू, कीप इट अप। उसका भाई याओ। सो जैसा सबने बताया, मतलब मेरे ख्याल से जनरेशन गैप की वजह से मुझे समझ में आया, लेकिन मैं दोहरा नहीं सकता। पर वो इतनी क्रिएटिव लिबर्टी तो चलती है। नहीं, हाँ, लेकिन वो क्रिएटिव लिबर्टी बहुत ढंग से ली है आपने। थैंक यू। मुझे वो जो लगा कि जो भी वर्ड्स यूज भी करें वो एग्जैक्ट जगह पे और एग्जैक्ट फिट बैठा है। और दूसरी चीज मुझे वो टर्मिनोलॉजी नहीं मालूम, लेकिन एक रहता है ना कि एक ब्रेथ में आप कितना लंबा खींच सकते हो, एक पूरा वर्स कंप्लीट करते हो आप। शायद 16 बार का था आपका वो वर्स, जिसमें आपने वो एक सांस समथिंग। हाँ, बहुत प्यारा था। थैंक यू सो मच। और आपका स्टेज का प्रेजेंस तो पता ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Pushkar, for such an electrifying performance. Now calling upon the stage the last performer from the category. Let's give it up for Aparichit. हेलो, कैसे हैं लोग सभी? ठीक है सब? पंजाबी किस किस को आती है यहाँ पे? बाकी हिंदी तो सभी को आती है क्योंकि हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, है ना? तो बेसिकली मैं बुरा मत मानना, वैसे बुरा मानने वाली बात ही नहीं है। मैंने अपना रिलीजन खुद स्विच किया है, मैं सिखिज्म में आया हूँ और बेसिकली हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा मानना ये है कि सिखिज्म और हिंदुइज्म अलग अलग नहीं है एक ही, है ना? तो मैंने जो अभी रैप अपना क्रिएट किया हुआ है, स्टार्टिंग पंजाबी से है, उसके बाद हिंदी का टच है, और क्यों लाया हूँ मैं हिंदी का टच वो भी मैंने बताया है। तो एक बार ही मेरी बीट चला रही है। उसके बाद ना मेरा सिर्फ इस पूरे गाने में सिर्फ एक वर्ड है जो आप अजब नहीं करोगे तो ठीक है, सॉरी उसके लिए। बस एक ही वर्ड है और कोई नहीं, हरा वर्ड प्योर है और उतना चलता है मेरे हिसाब से, ठीक है? बीट जी नहीं, सिर्फ एक ही वर्ड है और वो बहुत कॉमन है। वो वाला जोर से बोल देना ताकि समझ आ जाए। जी 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 जी, कॉमन है। Hey yo, check. This is Aparijit Singh, man. Check. ਵੇਖੀ ਜਾ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰੰਗ ਕਰੇ ਤਾਰ ਦੇ ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਲਾ ਲੋ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹਾਰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰੋਂ ਬੰਨੀ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਮੱਚੋ ਮੱਚਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕੋੜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਂਗੂ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸਾਤੋਂ ਖਾਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਾਂ ਸਾਫ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਰ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੋਟ ਰੱਖਾਂ ਦੁਨਾੜੀ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਵਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋਟ ਰੱਖਾਂ सीता साहू बंदा मुड तो शरीफ करना चाहते आप तो भी मैंने करके सब कुछ छोड़ रखा। ओ मैं आ गया फिर से हिंदी में, गलती मेरी नहीं क्योंकि जन्मा हूँ मैं दिल्ली में। और पिछले गाने में भी बोली मैंने बात ये कि मैं तो क्रेजी हूँ ही मेरे दोस्त भी हैं दिल्ली से। यो बावे कंपटीशन ही नहीं है, बैटल करना चाहते लोग पर ये मेरा मिशन ही नहीं है, मेरा मिशन ही नहीं। तो जो भी सोचते हो आप रिप्रेजेंट मैं नहीं करता कभी आस्तीन के साथ। चले बावे शुरू करते अपना दिल्ली वाला फ्लो, धर्म से मैं सिख पर मदर टंगे हिंदी मेरी ब्रो। इसका मतलब तुमको मतलब नहीं समझ में आने वाला, मेरी बात का तुम कितना मत मार दे क्यों हो। चेक ओके, तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि हाँ ध्यान दे दो। ये दुनिया के लोग भी कमाल हैं जब आप उनके पास बेमिसाल हैं।
ऊपर से देखूं तो सब लगे मुझे ठीक, पर जब अंदर से देखूं बुंडपटी अख लाल है। ये दुनिया के लोग भी कमाल हैं, जब आप इनके पास बेमिसाल हैं। ऊपर से देखूं तो सब लगे मुझे ठीक, पर जब अंदर से देखूं बुंडपटी अख लाल है। लो जी सच इनका सामने एक आया भाई, किसी ने इनका गेम है बजाया भाई। और ना खोद रही बातों ने कुआं, ये मेरा तजुर्बा जो मैंने 13 साल में कमाया भाई। और तेरी तरह मैं यहाँ तक आया नहीं, खाया हलाल पर हराम कभी खाया नहीं। लिखाई अपनी समय लिखूं सच की किताब, ख्वाब बड़े मेरे तभी वक्त करूं जाया नहीं। शोर मचाता मैं मुझे पसंद नहीं शांति, जो करना चाहे लोग पर कलानी मेरी मानती। 2012 से मैं कर रहा हसल कंटिन्यू, लड़का मैं दिल्ली का और अब मोहाली भी है जानती। मैं करता भाई मेरी जिंदगी आसान भाई, 13 साल से शब्दों से खिंचू प्राण भाई। और जो भी हासिल किया खुद के दम पे मैंने, मैं उन लोगों को नहीं सुनता जिनके शब्दों में नहीं जान भाई। वो लोग मुझे लगते काफी लालची, जो सिर्फ मतलब के लिए करते हैं याद जिए। काजिनी बातें बोलूं बीता अपना सच, मुझे प्यार नहीं होता क्योंकि माशूका लगती सांप सी। थोड़ा गौर मेरे बातों पे दो साहब जी, क्यों हंसियां बढ़वाते अपने आप की। Do you really think still she love you? अरे वो आपकी क्या होगी जो हुई नहीं खुद के बाकी। Fuck that shit bro, ये सब कुछ माया जाल है, दिखावटी दुनिया धीमे जहर के समान है। 15 साल की उम्र से कर रहा मैं ग्राइंड, मुझको सिखाते वो आके जो खुद फूकते माल है। पर मैं क्या भाई चाहिए नहीं कोई भी राय ब्रो, जान देना है तो और करो ट्राई ब्रो। I don't give a fuck जिन्हें होता नहीं हजम मेरा स्ट्रगल, तो फिर संदों से उतारू उनकी छाई ब्रो। ये दुनिया के लोग भी कमाल है, जब आप इनके पास बेमिसाल है। ऊपर से देखूं तो सब लगे मुझे ठीक, पर जब अंदर से देखूं बुंडपटी अख लाल है। ये दुनिया के लोग भी कमाल हैं, जब आप इनके पास बेमिसाल है। ऊपर से देखूं तो सब लगे मुझे ठीक, पर जब अंदर से देखूं बुंडपटी अख लाल है। Check, this is a परिचय सिंह, सीधा दिल्ली से दिल्ली टू पंजाब। थैंक यू सो मच अपरिचित भाई और चित भाई। आपने जो मास्क बनाना है, जो क्रिएटिविटी है, मुझे ज़्यादा पसंद आई ब्रो। बट तुम्हारी प्रेजेंस इट इज़ अमेजिंग ब्रो। अपरिचित भाई, सबसे पहले मुझे ये जो आप बोल रहे थे ब्रो, इसमें ना एक चीज़ समझ नहीं आई, जरा समझाओ। इसमें जो अब बार बार आ रहा है कि अंदर से देखूं, उसके बाद क्या बोलते हैं आप? बुंडपटी अख लाल है। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। पंजाबी आ गए ओए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बीइंग कोई इंटरप्शन नहीं था, ये पहनने के बाद भी कोई हेजिटेशन नहीं हो रहा था। बहुत अच्छी चीज है, कॉन्फिडेंस ऑन टॉप था। एंड शब्द वाकई में ही अतुल जी की बात से सहमत हूँ मैं, बाखूबी मुझे भी समझ में आए और क्लैरिटी थी। अदरवाइज रैप्स 90% मुझे भी समझ नहीं आते हैं। 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है, अगर शब्द ही नहीं समझ में आया तो लानत है मेरे पे। नहीं लानत क्यों होगी, रब आपका नाम अमरों में लिखे। सो ये हम लोगों में कहा जाता है, बीइंग पंजाबी ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है, एक विश होती है। तो गॉड ब्लेस यू की जगह यही कहूंगी, रब आपका नाम अमरों में लिखे। क्या बात है, गॉड ब्लेस यू। ये स्टेज नेम है अपरिचित या आपने? दिस इज माय स्टेज नेम एंड माय रियल नेम इज अंगद सिंह। अंगद सिंह, ओके। यहाँ पे चीजें छुपा कर रखी हैं आपने। बेसिकली मैं यहाँ पे ये बात बताना चाहूंगा, रैपर्स पहले सिर्फ 2 तरीके के होते थे, एक अंडरग्राउंड, एक कमर्शियल। अभी मार्केट में नया आया है एनोनिमस, ओके, लाइक तलविंदर, लाइक रियल बॉस। ओके, मैं इन सब से इंस्पायर्ड हूँ। मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाता किसी को। तलविंदर का जो कहना है वही मेरा कहना है। चेहरे में क्या रखा है जनाब, अल्फाजों पे ध्यान दीजिए। वाह वाह, बहुत प्यारा। मैं एक्टर थोड़ी हूँ, रैपर। बिल्कुल, मेरे अल्फाज मायने रखते हैं, चेहरे में। और मायने बहुत तगड़े ढंग से रख रहे हैं। हाँ, और मेरा जो अल्टीमेट ड्रीम है, मैंने अपना एक शुरुआत से ना एक अपना एनजीओ टाइप आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए सोच रखा है, इंडिपेंडेंट बर्ड्स, IBC, इंडिपेंडेंट बर्ड प्रोडक्शन। ये ऐसा मैं कुछ अपना एनजीओ टाइप बनाना चाहता हूँ जो आर्टिस्ट को मतलब सपोर्ट करे। नाइस। जिसके पास में सपोर्ट नहीं है, मैं चाहता हूँ कि उनको मैं सपोर्ट कर पाऊँ। That was a great performance with a great drip. So let's call upon stage Pushkar. Now let's have the scores. तेजस्वी भाई, वही, ये तो कुछ तगड़ा ही दोनों ही था। अब मैं कंफ्यूज हूँ किसे क्या करूँ। तो मैं ये सारी जिम्मेवारी कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है इनके ऊपर डालना चाहूंगा, और मैं दोनों को 10-10 देना चाहूंगा। क्या बात है।
एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अपरिचित का एक्सपीरियंस थोड़ा आपसे ज़्यादा है, आपने बहुत अच्छा किया। बीइंग मुझे थोड़ा सा समझने में डाउट रहा, बट मुझे उनका बहुत क्लैरिटी से समझ में आया है, तो मैंने पुष्कर जी को 8 दिए हैं और अपरिचित को 9 दिए हैं। आप इस चेहरा आधार कार्ड वालों को भी नहीं दिखाते। सर ये पर्सनल जगह अच्छा पुष्कर भाई, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बस थोड़ा सा हल्का सा रह गया। 8 पुष्कर को और अपरिचित को 9। So the clear winner is Aparchit. So from the poetry category, let's welcome Bhumi Gupta on stage. आप सभी को मेरा नमस्कार एंड मैं अतुल सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। तो कुछ पंक्तियों से मैं शुरुआत करती हूँ। कौन कहता है हम तबाह नहीं हैं, कौन कहता है हम तबाह नहीं हैं, मेरी बर्बादी का बस यहाँ कोई गवाह नहीं है। कौन कहता है हम तबाह नहीं है, मेरी बर्बादी का बस यहाँ कोई गवाह नहीं है। लोग कहते हैं तुम मुस्कुराते बहुत हो, लोग कहते हैं तुम मुस्कुराते बहुत हो, यहाँ रोने के लिए कोई जगह नहीं, रोने के लिए कोई जगह नहीं। चलिए कुछ पंक्तियां मैं प्यार की रखना चाहूंगी आप सभी के सामने। आंखों ने आज फिर बगावत की है, आंखों ने आज फिर बगावत की है, बेवक्त तुम्हें देखने की चाहत की है, बेवक्त तुम्हें देखने की चाहत की है। सांसें लूं तो ऐसा लगता है, सांसें लूं तो ऐसा लगता है, जैसे फिर दोबारा मैंने तुझे चाहने की चाहत की है, चाहत की है। बहुत बहुत शुक्रिया। ना तमन्ना है सितारों की, ना तमन्ना है सितारों की, न चाहत है हजारों की, ना ख्वाहिशें हैं किसी के तोहफों की, ना ख्वाहिशें हैं किसी के तोहफों की, मुझे बस एक ऐसा शख्स चाहिए, मुझे बस एक ऐसा शख्स चाहिए, जिसे पाकर मुझे जरूरत ना पड़े हजारों की, हजारों की। नजर भर के देखना चाहते थे जिसे, नजर भर के देखना चाहते थे जिसे, नजर भर भी ना देख सके उसे, नजर भर के देखना चाहते थे जिसे, नजर भर भी ना देख सके उसे। प्यार करना चाहते थे जिसे, प्यार से एक शब्द भी ना बोल सके उसे। हम तो लड़के हैं साहब, हम तो लड़के हैं साहब, हमारी में कमी कहाँ से महसूस होगी उसे। बहुत बहुत शुक्रिया। तुझे याद करते करते दिन बीत गया, तुझे याद करते करते दिन बीत गया, हाले दिल मैंने जताया भी नहीं, हाले दिल मैंने जताया भी नहीं। खामोशी में ही कट गई उम्र मेरी, खामोशी में ही कट गई उम्र मेरी, तू सामने था पर मैंने तुझे बताया भी नहीं, तुझे बताया भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर प्रेजेंस थी आपकी, और जो एक तरीका है वो तो बहुत अमेजिंग है। तो देखते हैं जजेस क्या कहते हैं। तेजस्वी भाई। हेलो। सो ये चीज सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई लड़के अपनी बातें नहीं कह पा रहे हैं। मेरे ख्याल से लड़कियां ही रिप्रेजेंट कर रही है लड़कों को। लेखक ही तो है जो सबकी बातों को, मन की बातों को सुन सकता है। क्या मन पढ़ते हो आप? जहाँ न पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि। बहुत खूबसूरत था। थैंक यू मैम। ऑफ कोर्स थोड़ा सा और पॉलिश करो, बट यू आर डूइंग वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू मैम। एक्चुअली मुझे ना शायरी वायरी थोड़ा कम समझ आती है, मैं इसलिए कम ही बोलता हूँ। बिकॉज मैं आपको बता देता हूँ अपनी एक रियल इंसिडेंट। एक बार किसी ने एक शेर पढ़ा था कि उसने जो पाँव रखा पानी में, सारा पानी शराब कर डाला। वाह। तो मैंने उसको कहा भाई शराब नहीं, खराब होना चाहिए ना, कोई पानी पैर में पानी डालेगा तो खराब ही होगा। तो बोला साले तेरे पैर नहीं है, मेरी महबूबा के पैर है। बट जैसे आपने बताया आपकी चौथी पांचवी, उस हिसाब से तो बहुत अच्छा कर रही हैं आप। और गॉड ब्लेस, टेक केयर। बहुत मजेदार था। एंड वी डू नॉट हैव अदर पार्टिसिपेंट, तो आप क्लियर विनर हैं, नेक्स्ट राउंड पे जा रहे हैं।
और बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू इट्स सर। अमेजिंग। एक शुक्रिया अदा मैं आप सभी ऑडियंस का करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इतने ध्यान से सुना। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Homanji. So now we have the last category with us, which is stand-up. So let's welcome Lavesh on stage with a huge round of applause, guys. हेलो एवरीवन। बहुत बढ़िया जजेस हैं। जजेस के लिए एक बार जोरदार तालियां। वाह, कितने प्यारे जजेस हैं। मतलब ये जो पैनल में देख रहा हूं ना, इनको देख के ना मुझे सच्ची बताऊं ना, जजेस वाली फील ही नहीं आ रही। एक मिनट आप इधर आना जरा, मैं आपको इधर आइए स्टेज पे। इनको देख के जजेस वाली फील नहीं आ रही। आपकी शादी नहीं हुई राइट? इनको आप ध्यान से देखिए। ये लड़के का बाप, ये लड़के की माँ और ये लड़का बैठा है। ठीक ठाक कमा लेता है और क्वालिटी है परिवार में। ससुर जी चुटकुले भी सुनाते हैं, ठीक है, मन लगा रहेगा। अगर पति काम पे चला जाएगा, ससुर जी चुटकुले सुना सुना के दिल लगाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो मतलब सच्ची बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे हंसी मजाक में ही सही, लेकिन मैं मेंशन जरूर करूंगा, अतुल जी का हाथ ना बहुत लोगों के पीछे है। मतलब ऑन द सीरियस नोट, अतुल सर बहुत मोटिवेट करते हैं और मुझे भी काफी बार उन्होंने कहा कि यार आपको करना चाहिए। जब मैं पहले एक दो बार ओपन माइक किया था तो मुझे भी थोड़ा फेयर था, तो मेरे अंदर से जो डर निकाला अतुल सर ने निकाला। अतुल सर की लेकिन मेरे को एक अच्छी बात पता है क्या लगती है? अतुल सर जब बोलते हैं तो इनकी आवाज और इनका जो काम है स्टैंड अप कॉमेडी, दोनों में तुलना नहीं है। इनकी आवाज कुछ अलग ही लगती है जब ये बात करते हैं। सर आपको पता है कि आप कितने बड़े कलाकार हैं? मैं सर नंबर मत काटते नहीं सीरियसली ऐसा लगता है कि यार मतलब आप किसी सत्संग में बैठे हो और आदमी प्रवचन दे रहा है सामने से। लेकिन एक बात, अभी जो स्टार्ट हुआ रैपर से हुआ था भाई, रैपर्स लोगों ने तो कमाल कर दिया। गोल्डी भाई धमाल मचा दिया यार तुमने, मतलब मजा आ गया। लेकिन रैपर्स और अतुल सर में एक बात कॉमन है, दोनों को उंगली करने की बहुत मतलब जिस तरह का जजमेंट चल रहा है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, दोनों को उंगली करने की आदत है। बस इतना फर्क है कि अतुल सर जी हमारे वो एक उंगली करते हैं, रैपर दो उंगली करते हैं। चलो खैर ये तो बात थी, लेकिन मैं सच्ची में बहुत फैन हूँ सर आपकी कॉमेडी का। और बहुत तेजस्वी लोग भी हैं हमारे बीच में जजेस में, तो एक बार इस तेजस्वी इंसान के लिए तालियां। ये जिस तरह की बारीकियां ढूंढ रहे हैं, कोई शक नहीं है मुझे कि अगली बार ये जावेद अख्तर के बगल में बैठे नजर आएंगे। मतलब भाई बेटा जो तुमने बात की है, तुम्हारे जो अल्फाज हैं, मुझे लगता है बहुत टाइम बहुत जल्दी आप उनके बगल में नजर आओगे मुझे। और मैम आप तो मतलब कमाल हो, मतलब आपको देख के क्या बोलूं, आपके जो डॉटर हैं उन्होंने भी बहुत ही कमाल की पोएम बोली। मतलब एक बात अच्छी लगती है कि जो अब इनको देख के मुझे पता लग रहा है माँ बाप का सुंदर होना कितना इंपॉर्टेंट है। देखो ये होता है कि मैं आई लव माई मॉम, आई लव माई डैड, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर वो सुंदर होते तो, बहुत सुंदर होते तो हमारा जो मतलब हम प्रोडक्ट अच्छा निकलता। अब मैं सोच रहा हूँ कभी कभी अपने आप को, मतलब अभी कोई आया था ना, कोई किसी ने बोला था कि अपने आप को प्यार करो, अपने आप को मतलब खूबसूरती आपको पसंद आनी चाहिए ना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो वहां बैठा बैठा मैं भी सोच रहा था यार इतना बुरा भी नहीं हुआ। तो ये चीज है। तो खैर आज मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितने भी रैपर्स हैं हमेशा अलग अलग लैंग्वेज के होते हैं। आज तो बहुत अच्छी बात ये हुई, रैपिंग हमने अलग अलग लैंग्वेज में सुनी, पंजाबी, हिंदी और असमीज। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं उनको लैंग्वेज नहीं आती होती, लेकिन ना वो प्रो बनते हैं, है ना। अब जैसे पंजाबी एक ऐसी लैंग्वेज है, दिल्ली में नॉर्थ इंडिया में तो पंजाबी चलती है, जाहिर सी बात है, पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ से नहीं है या उन्हें पंजाबी आती नहीं, लेकिन कूल बनने की कोशिश करते हैं। मेरा एक दोस्त मेरे पास आया, वो कह रहा यार लवेश यार तू मेरी ब्रा है यार।
मैंने कहा साले पहले तो मैं एक बात क्लियर करूं, मैं किसी की बुरा नहीं हूं, ठीक है? अबे यार क्या, मतलब पंजाबी नहीं आती मत बोलो, लेकिन नहीं, लोगों को ट्राई करना है। हमारे इंडिया में ना एक चीज मैं आपको बताऊं, लड़कियों के लिए आज आप देखो कितनी लड़कियां यहाँ पे परफॉर्म करके गई, राइट? अब चीजें लड़कियों के लिए बदल गई हैं, तो अब ये लड़कियों के लिए ना आप लोग भी अब कविताओं में, अच्छी बात मुझे लगती है कि आप लोग अब मर्दों का भी जिक्र करने लगे हो, आप चिंता जता रहे हो मर्दों के लिए, क्योंकि आने वाला समाज मर्दों के लिए अच्छा नहीं है। हम मर्द अपने राइट्स मांगेंगे कि आखिर कब दिन बदलेंगे हमारे, क्योंकि मैं बता रहा हूं अब भेदभाव उल्टा हो रहा है, अब लड़कों के साथ गलत हो रहा है। आप देखिए लड़कियों के लिए कितनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, ठीक है? अगर कोई छोटी हाइट की लड़की आती है कहीं पे तो उसे बोलते हैं शॉर्ट ब्यूटी, ठीक है? और यही अगर कोई छोटी हाइट का लड़का, ए बुटके इधर आ, ए बोने इधर आ, यही अगर कोई ब्लैक, मतलब अगर कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन की लड़की हो, उसे आजकल क्या बोला जाता है? 10 की ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी। और यही किसी के घर में काला लड़का पैदा हो जाए, उसका नाम रख देते हैं ए कालू, ए इधर आ चाय लेके आ चल। भाई इतना गलत हो रहा है, लड़के लड़कियों में भेदभाव हर जगह होता है। एक मैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम सबको जॉब भी करनी पड़ती है, राइट? अभी हम अतुल सर के लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जिस दिन पहुंच जाएंगे उस दिन शायद हम पेमेंट लेंगे आगे हर जगह। लेकिन हाँ, लेकिन ये अच्छी बात लगती है मेरे को जो शगुन के लिफाफे रखे हुए हैं। अब मेरा भी मन करता है ना 2-3 कैटेगरीज में परफॉर्म करूं, ताकि कम से कम जाने का खर्चा तो पूरा हो जाए। तो हमारी कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, तो यहाँ पे कौन लोग ऐसे हैं जो जॉब भी करते हैं साथ में, है कोई ऐसा? तो जब नौकरी करते हैं हम, आपको पता होगा कि लड़का लड़की में भी फर्क वहां पे भी किया जाता है। नौकरी में क्या होता है कि खासकर जो सबसे ज्यादा फर्क होता है ना, आपके टीममेट्स और मैनेजर्स करते हैं। अभी जैसे मैं एक बार परफॉर्म कर रहा था, एक बार मैं मतलब एक ऑफिस में मेरी नई नई ज्वाइनिंग थी, तो मैंने देखा कि मेरी टीममेट्स, वो लोग कैसे एक लड़की को हेल्प कर रहे हो, कैसे मुझे हेल्प कर रहे हैं। तो जैसे मैंने हेल्प मांगी कि एक्सक्यूज मी, ये ना मुझे ये एप्लीकेशन समझ नहीं आ रही, आप बताएंगे इसमें कैसे क्या करना है? वो लड़का वहां पे कंप्यूटर बैठे बैठे, अबे सिंपल है यार, तू उसको वहां पे नोट्स डाल, वहां पे सबमिट कर, हो गया। क्या यार कितने दिन हो गए तेरे को? सर अभी 3 दिन हुए। भाई 3 दिन? भाई पुराना एम्प्लॉय हो गया तू, भाई 3 दिन के बाद पुराना हो गया तू। तो यही लड़की ने हेल्प मांगी, एक्सक्यूज मी, ये ना मुझे समझ नहीं आ रहा। ओह व्हाई नॉट, ये देखिए ये हो गया। कितना सिंपल था भाई, मैंने तभी सीख लिया। मैंने कहा भाई लड़कों की कदर नहीं है कहीं पे। जब मैं नया नया कॉमेडी करता था तो लोगों को नहीं पता था, अभी तो पहला स्टेज था, तो बहुत से लोग जो ऑडियंस में बैठे होते थे वो लोग मुझे अक्सर डिमांड करते थे, सर कुछ बी प्राक का हो जाए। भाई मैं बी प्राक नहीं हूं। और ये जो भाई फोटो खींच रहा है, यार तू सुधर जा, मैं बता रहा हूं। इतना नॉटी बॉय है, इतना नॉटी बॉय है भाई, नॉटी अमेरिका कम देखा था। भाई मैं वो नहीं हूं, ठीक है, जो तुम मेरे को समझ रहा था कुछ देर पहले। लेकिन बी प्राक से एक बात याद आई, तो आपको पता है कि हमारे जो सर हैं आदरणीय जज अतुल जी, ये भी बहुत अच्छा गाते हैं। और गाने से आपको पता ही है सर, मेरा फेवरेट उदित जी के गाने का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अभी मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि जो पुराने गाने होते थे ना, उनमें मीनिंग जो होता है, पूरे गाने में मीनिंग निकलता है। आप हर सिचुएशन पे गाना होता था पहले 90s में, अब आजकल मीनिंगलेस गाने आते हैं। तो अभी मैं नैनीताल गया घूमने अपनी वाइफ के साथ, तो वहां जाके मेरे को उदित जी का वो गाना याद आया। अब एक ही गाने में 2 सिचुएशन मेरे साथ हो गए, मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही मैं नैनीताल गया, मैंने गाना गाया, दुल्हन सी सजी धरती, खुला वो आसमां, बुलाता है हमें फिर वो चाहत का जहां। होटल वाला आया बिल लेके, सर ये बिल। अब लौट चले हो, अब लौट चले। सर वो जीएसटी भी भरना है आपको। आप लौट चले,
लौट चले। थैंक यू गाइस, थैंक यू यार, बहुत मजा आया। आज की ऑडियंस भी बहुत कमाल की थी। थैंक यू सो मच। अतुल सर से शुरू करते हैं। एंड थैंक यू सर। सर मैम आप आंखें बंद करेंगे। सब कर लो। मैं इसलिए आया हूँ, ये बोल रहा था कि अतुल सर का बहुत लोगों के पीछे हाथ है, उसे हाथ नहीं कहते बेटा। उधर देख रहा था, ये देख तेरे लिए मैं क्या लेके आया, बता सबको मैं कितना प्यार करता हूँ, तो खोल के दिखा सबको। बहुत प्यार करते हो सर आप मेरे से। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू सो मच सर। मैं आपको लेकिन एक बात बताऊं, इसे ज़ूम इन कर दो, शैम्पू दिया भाई साहब। लेकिन एक बात बताऊं, जब आप टकले होते हो ना तो आपको इस बात का ज्यादा डर लगता है कि ग्रोथ तो नहीं आ गई, शेव करवानी पड़ती है। और ये कह रहा था बी प्राक भी, ये किस एंगल से बी प्राक लगता है? सस्ता जोनी सिंह, ये जे कॉलोनी का जोनी सिंह, ये आपको बी प्राक कहाँ से लगता है? बट बहुत बहुत अच्छा है, यू डिड वेरी वेल, गॉड ब्लेस, टेक केयर। मैं सुझाव देना चाहूंगा वो ये था कि मतलब हर एक बीट में जो टाइम चाहिए ना, वो मेरे ख्याल से पंच लाइन या तो पहले आ जा रहे थे, मतलब प्रेमिस देने से पहले, या फिर वो एक रहता है टेंशन ब्रेक करना, उसके बाद आप पंच देते हो, तो उससे पहले ही पंच आ जा रहे थे, पंच के बाद टैग नहीं रहते थे। तो ये चीजों पे हम सुधार कर सकते हैं। बाकी बहुत अमेजिंग, बिल्कुल बहुत अमेजिंग। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू। बी प्राक आप बिल्कुल नहीं लगते हैं। नहीं थैंक यू। शैम्पू का यूज कीजिएगा और बीवी को लेके जाइएगा तो गानों का सिलेक्शन अच्छा रखेगा, वरना बिल के साथ साथ और बहुत कुछ करना पड़ेगा आगे आने, पता चले शॉपिंग के बिल्स भी देने पड़े आपको। थैंक यू, इट वाज अमेजिंग, गॉड ब्लेस यू। Thank you so much for your support and thank you for your support as well. So let's move on to the next performance and then we'll call you back. So moving on to the last performance of the night. Let's welcome Bhumi on stage. Bhumi is from very far, Jaipur. Give me a loud cheer. Cheer, हाँ cheer तो दो। ये है अच्छे दोस्त। मेरे वालों ने बोला था तू स्टेज पे जाना, लोग तेरी शक्ल देख के हंस देंगे। मेरे साथ इससे बुरा है, मैं खड़ी होती हूँ पीछे की ऑडियंस को दिखाई नहीं देती हूँ। तो मेरी स्कूल लाइफ वाज वेरी क्रेजी गाइस, वेरी क्रेजी। मतलब बच्चे मुझसे काफी ज्यादा खुश रहते थे फॉर दीज 3 रीजंस। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है शिंचेनु है। सेकंड इज मसाब, उसी का कैरेक्टर है। He's like, शान तुम मुझे इतना क्यों परेशान करते हो? तुम्हें पता है ना मुझे तुमसे कितना डर लगता है। थर्ड इज पूछा, वो थोड़ा डीप बोलता है। He's like, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पूछा, मुझे पता है। मतलब बच्चे एक पॉइंट पे इतने मेरे पास आ गए थे और सेटिस्फाई होते थे, मेरा ऑरा बन गया था। बच्चों को 2 सेकंड में सेटिस्फाई करके बिना हाथ लगाए। तो तुम्हें ये तो पता होगा कि अगर किसी चीज की प्राइस गिरती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है। मेरे स्कूल के कुर्ते सस्ते हो गए, मेरी मम्मी ने उन्हें स्टॉक में लाना चालू कर दिया। मैं गर्ल्स स्कूल में थी। अब मेरा भाई और मेरे पापा दोनों लेडीज कुर्ता पहन के ऑफिस गए। मेरी माँ यही नहीं रुकी, जो भी घर आता कुर्ते में ही वापस जाता। मेरे भाई जैसे दोस्त घर पे आए हुए थे, मम्मी ने उन्हें कुर्ते पहना दिए। अब अगर उनके पूरे ग्रुप में कोई लड़का लग रहा है तो वो हूं मैं। तो हमने सोचा गन्ने का जूस पियेंगे, बड़ा ग्लास 30 रुपए। हम पहुंचे, हमारे कुल मिला के 10 रुपए हुए थे। हमने अंकल के आगे वो 10 रुपए रखे और कहा एक गन्ने का जूस लगा दो। सबने इतने कॉन्फिडेंस से बोला है। पहले तो अंकल ने हमारी ड्रेस देखी, फिर हमारे हाथ में पड़े हुए 10 रुपए देखे। उस रुपए में 1 रुपए का सगन मिला के कहते हैं कि बेटा ये ठेला तुम ही संभाल लो, मुझसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है इस ठेले की। तो हमारी वहां बात नहीं बनी। हम सोचे कि रेस्टोरेंट चलते हैं। एक तो मेरे दोस्त ऐसे हैं, इनमें ढाबे से आगे की जिंदगी कभी देखी ही नहीं। ये वो लोग हैं जो रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट बुलाते हैं। हम पहुंचे रेस्टोरेंट। हमने वहां जाते ही ऑर्डर कर दिया ब्लैक करंट आइसक्रीम शेक। एक तो इसका नाम इतना बड़ा है कि मेरे ग्रुप पे सिर्फ 2 लोग बोल पा रहे हैं, एक मैं
एक मेरा वेटर दोस्त, वो आया ना, उसका असली कलर ब्लैक था भी नहीं, उसका असली कलर था पर्पल। उसे देख के मुझे मेरे जीवन में सिर्फ दो ही चीजें ब्लैक दिख रही थी। पहला मेरा फ्यूचर, दूसरी मेरी शक्ल। हंस रहे हो भाई, चीटिंग है। ओके, एक तो तुम लड़कों के साथ हैंग आउट करते हो और लड़कियों के साथ हैंग आउट करते हो, इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। लड़कों का सब फिक्स रहता है कि लड़कियों का सब फिक्स रहता है कि वो घर से चलेंगी, 4 कदम उतरेंगी, फिर उसके बाद रिक्शा करेंगी, फिर किसी की बिचिंग करेगी। लड़कों का कुछ फिक्स नहीं होता। मैंने बोला अब कहाँ जाना है? कहते हैं जहाँ रास्ता ले जाए। रास्ता हमें से बर्बादी पे लेके गए। हमने बर्बादी के आगे का रास्ता आज तक देखा ही नहीं है। तो अब हमें रास्ता ले आया शमशान घाट। मैंने कहा यहाँ क्या करना है? कहते हैं एक्सप्लोर। यहाँ क्या एक्सप्लोर करूं मैं? मैंने एक्सप्लोर करना चालू किया। एक्सप्लोर करते करते हमें किसी के दादाजी दिख गए, किसी और की दादी को ताड़ते हुए, वो भी पितृ योनि में। अब बुड्ढों को क्लासिफाई करने के मेरे पास 3 तरीके हैं। पहले वो जो ब्रश पे टूथपेस्ट लगा के ब्रश करते हैं, दूसरे वो जो अंगुली पे टूथपेस्ट लगा के उस पे ब्रश करते हैं, एंड तीसरे माय फेवरेट जो जेब से दांत निकाल के उन दांतों में ब्रश करते हैं। तो मेरा दोस्त ना एक बार नहीं, लड़कों लड़कियों के साथ ये भी फर्क होता है कि लड़के सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं है जितनी लड़कियां हैं। तो मेरी दोस्त ने स्नैप लेके लिखा शमशान घाट। क्या हगने मुतने आत्मा पटाने क्या करने गया था तू शमशान घाट? वही लड़कियां काफी क्रिएटिव होती है। मैं और मेरे भाई सब्जी लेकर आए थे, उसने सब्जी की स्नैप लेके लिखा दीज वेजिटेबल लिट माय सोल। लिट माय सोल, अबे कद्दू है ये? इतनी देर में हम लोग कोई गाँव आ गए थे, वहां कोई तो प्रथा चल रही थी, तो लड़की ने उसकी स्नैप लेके लिखा कि दिस गर्ल इज सेटिंग हर हार्ट ऑन फायर। सेटिंग हर हार्ट ऑन फायर? अबे सती प्रथा कहते हैं इसको। जाके रोक इसे। तो अब इसकी भी गलती नहीं है यार, देखो हम गर्ल्स स्कूल में थे, गर्ल्स कॉलेज में है, तो अब हमने लड़के माइनॉरिटी में देखे हैं। वहां लड़के अपना ऐसा ड्रेस नहीं करे कि मेरी तोन ना दिख जाए, बोल देंगे ही वाज आस्किंग फॉर इट। तो और पता है हमारे स्कूल वाले बहुत क्रेजी से। तुमने कभी भी ऑल गर्ल्स डांस परफॉर्मेंस देखा है? ये 5-5 फीट की लड़कियां होती है, इनकी 1.5 से 2.5 फीट की चोटी होती है, सारी कतार में खड़ी होती है, एंड आउट ऑफ नोवेयर, लिटरली आउट ऑफ नोवेयर ये वाला स्टेप करती है। मैं इन्हीं को देख के ओम भूर्भुवः स्वाहा। अब समझ आया वो दादाजी उस दादी को क्यों ताड़ रहे थे। अब हमारे प्रिंसिपल भी बहुत क्रेजी थे, उन्होंने सोचा हम प्रिंसेसेस का मेटावर्स बनाएंगे, भांति भांति की प्रिंसेसेस को एक टाइमलाइन में रख के खड़ी कर देंगे। स्नो वाइट में वाइट को छोड़ के सब कुछ था। रूपंसल बॉय कट वाली लड़की थी। मुझे डाउट है कि वो लड़का ही है, गर्ल्स स्कूल में लड़की बन के पढ़ रहा है। और पता है अब तुमने देखा होगा सिंड्रेला ना, उससे पंपकिन वाले चीज से कुछ तो निकलती है। इनके पास लास्ट मिनट में कहाँ से आएगा पंपकिन? हम कल ही लाए। तो हम पंपकिन लाए, पर अब दिक्कत ये हो गई कि उस कद्दू से, आधे फीट के कद्दू से 5.5 फीट की महिला निकल रही है, वो भी विद स्पोर्ट्स शूज, सर्टिफाइड जाट बैडी। तो अब मेरा दोस्त ना कुत्ता लेकर आया था, उसने उस कुत्ते का नाम शेरू निकाल दिया, शेर का नाम मीठा कर दिया उसने दोस्तों। तो हमने सोचा हम भी बिल्ली लाएंगे, लेकिन उस बिल्ली का नाम बहुत आसान रखेंगे। हमने बिल्ली का नाम कुत्ता रख दिया, लेकिन वो बिल्ली थी काफी तेज। उसने आते पहले ही हमारा सारा घर फड़क दिया, वो भी विदाउट प्रॉपर्टी पेपर्स। वो तो मुझे कुछ समय बाद समझ आया कि उस बिल्ली को लोग चाची बुलाते हैं। तो फिर हमने सोचा कि चलो अब कहाँ चलना है? कहते रेलवे स्टेशन। टिकट हम में से किसी के पास नहीं है, अब हम रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, निठल ले। इतनी देर में हम में से हमारा एक दोस्त बोलता है कि तुम्हें पता है ट्रेन में आजकल डिलीवरी भी होती है। भाई कहाँ हो रही है डिलीवरी? अब हम सब ये देखने में इंटरेस्टेड है कि लड़का पैदा हुआ है या लड़की। वो देखो, अरे जोमेटो वाला एक डॉक्टर है। हमें 4 मिनट बाद समझ आया खाने की डिलीवरी की बात हो रही थी। एक तो मेरी दरख्वास्त है, आप जीवन में कुछ भी कर लीजिएगा, लेकिन स्लीपर ट्रेन में कभी मत चढ़िएगा, वो भी विदाउट टिकट। वहां खड़े होने की छोड़ो, मूतने तक की जगह नहीं मिलती। मेरा एक दोस्त भावुक हो गया, वो मूत दिया, नीचे एक अंकल सो रहे थे। वो करते कि सुबह सुबह ये ल्यूकवार्म वाटर तो ठीक है, लेकिन ये
पानी इतना खट्टा मीठा कैसे है? हम सारे 15 के 15 एक साथ। अंकल, गन्ने का जूस, बड़ा ग्लास। बहुत अमेजिंग था, मजा आ गया। वो बिल्ली का नाम जो तुमने कुत्ता रखा था ना, कुतिया रखना वो बहुत मजेदार था। और वो जो दांत वाला ना, मुझे पर्सनली तगड़ा, अमेजिंग। अतुल सर, कैसे हैं आप? कहाँ से हैं? जयपुर। जयपुर से। कितने टाइम से कॉमेडी कर रहे हैं? सर आई हैव अ स्टोरी फॉर दैट, अगर 1 मिनट सुनो। ठीक है, तो 2023 में मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे एक वीडियो भेजा था, सरोजनी मार्केट का वो वीडियो था, आकाश गुप्ता का। तो उस टाइम तो मुझे पता नहीं था स्टैंड अप कॉमेडी क्या होती है, तो मैंने देख के छोड़ दी कि होगी। फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझसे दोस्ती तोड़ दी, 8 साल की दोस्ती हो। तो फिर मैंने सोचा रिवेंज लेते हैं, तो मैंने कॉमेडी देखना चालू करी। मैंने कहा उससे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो 2023 में स्कूल में 1-2 बार परफॉर्म किया था, बाकी नहीं किया। फिर घर वाले बोले नहीं होगा तुमसे, बैठ दो। तो 2024 और 25 कुछ नहीं किया। फिर अभी 2026 में मेरे को लगा भाई करने का है, तो फिर मैं आ गई। एंड लिटरली इतनी जोर से लड़ाई हो गई थी कि एक बार तो मम्मी ने कह दिया था तू जो करना है कर ले, मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगी, मेरे को तेरे स्टेज परफॉर्मेंस नहीं देखने। एंड टुडे शी इज सिटिंग राइट हियर। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। दो बातें मैं आपसे बोलूं कि एक तो वो जो ट्रेन में जो खट्टा मीठा पानी, वो खट्टा मीठा नहीं, वो नमकीन था। आपने टेस्ट किया है? क्यों? अंकल तो यही है, लेटा हुआ था। मैं ही नीचे लेटा हुआ था। तो आप ये झूठ बोलना बंद करो एक तो कि खट्टा मीठा था, ठीक है? और आपका तो मतलब आपको क्या ही बहुत आउटस्टैंडिंग, आई लाइक, मजा आ गया आपका परफॉर्मेंस देखते। और आपके फादर क्या करते हैं? फादर? ही इज अ बिजनेसमैन। तो उनको बोलो आपकी इंस्टॉलमेंट पूरी करें, इतने छोटे कैसे? किस्तों पे लिया है क्या आपको? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। थैंक यू। फिल्म भूमि अमेजिंग, बहुत अच्छा था। 2 चीजें बोलूंगी, जितना बोलूंगी, जितना तारीफ आपने अपनी हाइट की खुद कर ली ना, आई थिंक किसी की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। एंड गन्ने का पानी वानी एक तरफ, एंड तुम्हारी हाइट का जादू टोटल एक तरफ। इट वाज अमेजिंग, गॉड ब्लेस यू, कीप इट अप। हाय भूमि, थ्रू आउट द शो मैं तो कुछ लिखा ही नहीं हूँ और बहुत ज्यादा एंजॉय किया हूँ। बहुत ज्यादा एंजॉय किया मैं। मेरे ख्याल से वो जोमेटो वाला या फिर वो डिलीवरी से ज्यादा अच्छी डिलीवरी आपकी ये जोक्स और पंचेस की थी, तो बहुत बेहतरीन था आपका सारा पार्ट। That was a great performance. लेट्स वोट। अतुल सर। नहीं, मेरे से वो, मेरे ख्याल से जजमेंट के लिए अतुल सर को फाइनली छोड़ते हैं। मैं तो 9 और 9 दोनों को देने वाला हूँ, दोनों ही बहुत प्यारे। थैंक यू। आई थिंक 9 on 9 बोथ ऑफ यू, दोनों ने बहुत अच्छा किया। एंड एक्सपीरियंस यहाँ मुझे कहीं कम नहीं लगा किसी का भी। यू बोथ डिड सो वेल। और मेरे नंबर कितने वाले? मेरे हिसाब से भूमि आपने रॉक किया। यू आर विनर 9 एंड लविश 8। So the clear winner is Bhumi. Thank you. और नहीं, मैं भी ये बोलना चाहूँगा कि बहुत बार ओपन माइक्स के से पहले भी इस तरह का कॉन्टेस्ट किया था मैंने, कि जहाँ पे बैटल था, बट ये पहली बार हुआ ऐसा कि कोई बढ़िया कॉमेडियन मैंने सुना है, बहुत बढ़िया। तो एक बार इनके वाकई बहुत जोरदार तालियां। मतलब मैं कुछ सीख के जा रहा हूँ यहाँ से अगेन। थैंक यू सो मच। तो एक आखिरी बात कहना चाहूँगा कि हमने स्टार्ट में एक चीज़ बोली थी कि हम एक ऐसा स्टेज तैयार करना चाहते हैं जहाँ पे अगर किसी के अंदर हुनर है, एक बार यह है पूरी इंडस्ट्री को दिख जाए, राइट? लेकिन सीजन 1 वालों को कुछ नहीं मिलेगा, लाइक दे आर नॉट बी गेटिंग बेनिफिटेड, बट सीजन 1 के सपोर्टिव ऑडियंस प्लस ऑल द आर्टिस्ट विल ऑलवेज बी कनेक्टेड टू द क्रिएटिव कनेक्ट टीम, और कोई भी प्रोजेक्ट फ्यूचर में होता है तो दे विल बी द प्रेफर्ड पीपल फॉर अस। थैंक यू सो मच गाइस। चीज